So thank you everyone for joining in today. So I have four set of people today. One is, of course, the team from Lendane, including Mr. Nirmal Rivaria, who's the founding member and Chief Business Officer at Lendane Club. Welcome, sir. Welcome, Nirmal sir, to the session. And he has been a ubiquitous figure on almost all the webinars and in-person seminars that Centricity has held across the country, especially with Faraz and team. Then we have the Centricity teams across North and South, led by Faraz Mahmood in Lucknow, and who's the Chief Business Officer for Centricity in North and East India, and of course Anirudh Mehnot, who's the Chief Business Officer for Centricity in South. We have their entire teams, and then of course we have all the partners who are our esteemed and precious partners across the country, and all the clients who are whose money is being managed by these partners. We welcome all the four stakeholders in the webinar today. Before I set the floor for Mr. Rivaria, just a couple of seconds about Centricity. Centricity, as you would all know, is a B2B wealth management platform which was set up by a team of professionals early this year. We have been in operation since April this year, and we have had very steady progress, God willing, till now in the last 6 months. We are now working with almost around 1,000 partners across India today, and we've had very good support. I'm eternally thankful to all the partners for helping us in this journey at a very fast pace. We are currently, managing these 800 partners across an AUM of almost an asset under management of almost 2,500 crores, which is spread across mutual funds, across P2B products, across PMS, AIFs, and across bonds and NCDs. It's a very encouraging thought that we are walking the talk. Our partners are walking the talk of distributing and advising on multi-asset class products to our esteemed clients. In that sense, we are a differentiated wealth management platform. We have had these product sessions and product webinars across different products made by mutual funds or PMSs or AIFs, or of course P2B products also, which is basically the webinar that we're conducting today with Linden Club. Our chief partner as far as P2P as an asset class is concerned. So once more, again, thank you so much for taking time out on a weekend to come here and attend this webinar. I encourage everybody to be as participative as possible, ask as many questions as possible, because we are today, we will be hearing from, in the real sense of things, from the horse's mouth. There is nobody more senior in Lendane than Mr. Rivaria. So I would, encourage everybody to ask as many questions, clear as many doubts as possible. Any small, large, any doubt will be, eagerly answered by Mr. Rivaria. So over to Nirmal ji. Thank you so much. Nirmal ji, you are on mute. We can start now. Deepak? Yes, sense. Yeah. So I have my colleague Deepak Bhatt from Delhi. He will share the screen. He'll start, and then in between I will pitch in. Yeah, sure. Yes. Sure, sir. I'll just. I have just one request from the participants. The screen actually consumes a lot of bandwidth. So for seamless access, one can actually switch off their cameras, because उससे थोड़ा सा internet speed consume होता है. If we can switch off the cameras for now, at least, the speed will be much higher. Later on, when we open up the stage for question and answers, we can again switch on the cameras. Thank you so much. So is my screen visible right now? Yes. You can enlarge it, Deepak, if possible. Okay, yeah, sure. So I'll start the presentation. I would just want to know should it be in English or Hindi English mix or Deepak, yeah. So that would be in Hindi English both, like 60%, 70% in Hindi
and 30% in English. हाँ. Okay, sure. So, namaskar, welcome all everybody. और today we are here. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया एसेट क्लास, मतलब एक नया कैटेगरी या वर्ग जहां पर हम अपना निवेश कर सकते हैं, वेयर वी कैन इन्वेस्ट. इट्स एन ऑल्टरनेट डेट एसेट क्लास, जो एक डेट साइड में, जो एक ऋण वाली साइड में जो इन्वेस्टमेंट होती है, वहां पर को हम लोग एक डिस्कशन करेंगे. और जो जो एक नया दीपक आप म्यूट हो गए हो. दीपक जी आप म्यूट पे हैं. ओके, सॉरी. सो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ. आई विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग नाउ. तो हम लोग आज यहाँ पर को डिस्कस करने आए हैं एक नया एसेट क्लास, एक नया कैटेगरी, एक वर्ग निवेश के, उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट के उस नजरिए से. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑल्टरनेट डेट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास. तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं टू डिस्कस द P2P इन्वेस्टमेंट साइड. P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर. पीयर टू पीयर का मतलब है सिंगल लोगों के समक्ष एक दूसरे के साथ जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म की तरह इन्वेस्टमेंट यहाँ पर को होता है. तो मैं एक हल्का सा बैकग्राउंड और इसके पीछे की जो एक कहानी है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा. तो ये और हमारी इंडस्ट्री के बारे में भी मैं बताता हूँ आपको. ये इंडस्ट्री जब 2010-11 में हमारा इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा था, एक इकोसिस्टम हल्का फुल्का स्टार्ट हो रहा था, तो कई वेबसाइट्स और कई एप्स ऐसे आए जो क्या करते थे, वो किसी को, इन्वेस्टर्स को बोलते थे कि अगर आपको सपोज 18%, 19% कुछ रिटर्न बनाना है, अगर आपने इतना ब्याज बनाना है उस पे, तो आप हमको पैसा दीजिए. और साइमल्टेनियसली वो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज लाइक दे यूज्ड टू लुक फॉर बोरोवर्स, जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है. वो दूसरी साइड उनको बोलते थे हम आपको ये एक फाइनेंस करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और वो बीच में दे यूज्ड टू मेक मनी. तो जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ती गई, ऐसे वेबसाइट्स और एप्स ऐसे आते रहे, बिकॉज जो एक डिजिटल इकोसिस्टम हमारा ग्रो करता रहा. तो 2015 के आसपास हमारी जो कंपनी है लेन देन क्लब, ये एस्टेब्लिश हुई. वी वर आल्सो वन ऑफ देम. बट अराउंड 2016 के आसपास जब 100 करोड़ का एक अमाउंट टच हुआ, ये इंडस्ट्री ने टच किया, जहां पर कोई पैसे का आदान प्रदान उस टाइम पे हुआ था, तो आरबीआई और सेबी इनकी नजर गई कि यहाँ पर कोई एक नया एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है. तो और आरबीआई कैन नॉट ओवरलुक सच सिस्टम वेयर मनी इज बीइंग इन्वॉल्व्ड. तो आरबीआई और सेबी ने ये डिसाइड किया कि ये जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, इसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए. तो उन्होंने करीब 2016 के आसपास एक व्हाइट पेपर इशू किया, और 2017 में कुछ 22 लाइसेंसेज ऐसे दिए जिनको बोला जाता है एनबीएफसी P2P लाइसेंस. जैसे आरबीआई अलग अलग टाइप के लाइसेंस देता है, एक बैंकिंग लाइसेंस होता है, एक एनबीएफसी का लाइसेंस होता है, एक एनबीएफसी P2P का लाइसेंस उन्होंने दिया. तो इसमें आरबीआई ने क्या बोला, एक गाइडलाइंस रखे, कुछ नियम कानून बनाए. उसमें उन्होंने बोला अगर ये काम चलना है तो ये इस तरीके से चलेगा. कुछ गाइडलाइंस उन्होंने रखे थे, बिकॉज एज मनी इज इन्वॉल्व, पीपल्स इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व, और उसमें क्या होता है, लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, जो डाल रहे हैं और जो ले रहे हैं, उनका भी शोषण नहीं होना चाहिए. दे शुड आल्सो नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय इफ दे आर चार्ज हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ओवर देयर. तो आरबीआई ने गाइडलाइन रखी, और उसमें गाइडलाइन में उन्होंने ये चीज कुछ चीजें रखी थी. तो हमारी कंपनी 2015 की बनी हुई है. पैन इंडिया हमारा प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंस है. हमारे पास करीब 22 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं अभी, और करीब 70 लाख के आसपास हमारे पास बोरोवर्स हैं जो हमसे पैसा लेते हैं. इंडस्ट्री ने अभी तक करीब 26,000 करोड़ तक का डिसबर्सल किया है, जिसमें अराउंड 13,000 करोड़ वी हैव डिसबर्स्ड एज फ्रॉम लेन देन क्लब. तो करीब करीब 50% का हमारा इसमें मार्केट शेयर है. तो जब आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस जब इसमें डाली, तो आरबीआई ने बोला कि जैसे P2P एक जो फाइनेंस जो है, जो P2P प्लेटफॉर्म है, या इन्वेस्टमेंट होगी या पैसा लिया जाएगा, ये डुअल नेचर का होता है.
इसमें एक साइड पे आपके इन्वेस्टर्स होते हैं जो निवेश करते हैं, जो पैसा देते हैं आपको, फाइनेंस करते हैं, और दूसरी साइड आपके बोरोवर्स होते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है। तो ये तो चलता हुआ आ रहा था, लेकिन अब इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक बिल्कुल एक ढांचे में डालने के लिए आरबीआई ने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम इसमें आपको एक ट्रस्टी बना देंगे बीच में किसी को। ट्रस्टी होएगा जो ये सारा पैसे का आदान प्रदान देखेगा, कंपनी के पास इस पैसे का एक्सेस नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स आते हैं, वो अपना कंसेंट देते हैं कि अब मैं आपको अपना पैसा दे रहा हूँ, और दूसरी साइड हमारे पास बोरोवर्स होते हैं, वो हमसे पैसा मांगते हैं, एक एग्रीमेंट उनके साथ होता है। देन द बोरोवर्स दे गिव अस बैक द मनी विद द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन ईएमआई बेसिस, और जब वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आता है, वी जनरेट रिटर्न फॉर आवर इन्वेस्टर्स, और हम वो पैसा उनको वापस दे देते हैं। तो एक तो ये तो छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन है कि कैसे ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चीजों को चलाने के लिए कैसे पहल हुई थी बोल के। तो उसके बाद क्या हुआ था, ये हमारे हमारे फाउंडर्स हैं, जो हमारे लेन देन क्लब के सीईओ एंड को फाउंडर मिस्टर भाविन पटेल, और हमारे जो को फाउंडर है मिस्टर दीपेश कार्की, ही इज आवर सीटीओ। तो इन लोगों का एक्सपीरियंस ऑलरेडी इस सेक्टर में काफी था पहले से, एंड दे आर अ सीजनल फाइनेंस एक्सपर्ट्स, जिन्होंने हमारी कंपनी को स्टार्ट किया लेन देन क्लब को। लेन देन क्लब इज बैक्ड बाय क्रेडिबल इन्वेस्टर्स, जिसमें कुणाल शाह जो क्रेड के हैं उनका पैसा लगा हुआ है, आलोक बंसल जो पॉलिसी बाजार के को फाउंडर हैं, मिस्टर हार्दिक पांड्या, ही इज आवर एम्बेसडर आल्सो, ब्रांड एम्बेसडर एंड आवर इन्वेस्टर आल्सो। देन देयर इज रमाकांत शर्मा फ्रॉम लिव स्पेस। बाकी कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं हमारे पास, जैसे अर्थ वेंचर, टस्कन वेंचर्स एंड ओम स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज आवर टीम। हमारे पास एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीम है। बीइंग अ फिनटेक, नॉर्मली फिनटेक्स में क्या होता है कि देयर इज वन साइडेड यंग टीम व्हिच इज देयर, लेकिन हमने एक चीज नोटिस करी कि यंग के साथ एक ब्लेंड होना चाहिए एक्सपीरियंस का। So we have a strong team and we have a presence of around 23 branches pan India, और ये हमारे जो हेड्स हैं हर डिपार्टमेंट के, they are very experienced, they have experience of more than 15-20 years. उसके बाद we are I mean quite recognized in the industry. हमारे पास we have got some awards like Great Place to Work and Promising Brands and Startups and all. So this is a brief about लेन देन क्लब। एक लेन देन क्लब के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ है कि हम क्या हैं, हम हमारा एग्जिस्टेंस क्या है बोल के। तो नाउ आई जस्ट गो थ्रू कि ये जो हम P2P इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट क्या है, वो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और वो कैसे पैसे का जो फ्लो है वो क्या होता है, और जो उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है वो क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उसका नाम है FMPP। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल मैच मेकिंग। दीपक, यस सर। I would like to add a few points on P2P lending, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगा। तो सभी के जानकारी के लिए, जो अपने समाज में जो ब्याज का धंधा चल रहा था, जब से अपना समाज बना है तब से ब्याज का धंधा अपने आप पे चल रहा था। हम लोग एक दूसरे को पैसा देते हैं, किसी को जरूरत पड़ती थी तो एक दूसरे को उधार लेते थे। उस ब्याज के धंधे को आरबीआई ने 2017 में ऑर्गेनाइज करके उसको लीगलाइज कर दिया। और ये जो ब्याज का धंधा है, जहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा ब्याज पे देता था, उसको पीयर टू पीयर लैंडिंग का नाम दिया गया। और ये ब्याज के धंधे को करने के लिए, इस पीयर टू पीयर लैंडिंग के धंधे को करने के लिए आरबीआई ने बोला, यदि कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिकॉज पैसे के लेन देन में काफी एक्सीडेंट्स आरबीआई ने देखे 70 साल में। काफी कंपनी आई, पैसा लेके इन्वेस्टर का चले गए एंड ऑल दैट। तो जब आरबीआई ने बोला कि ये धंधा कोई कर सकता है, तो उसको सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस जब कोई लेगा तो उसको एक गिवन फ्रेमवर्क में काम करना पड़ेगा। उन फ्रेमवर्क को बोलते हैं रेगुलेशंस। जैसे म्यूचुअल फंड में सेबी होता है, वैसे ही पैसे के लेन देन में आरबीआई होता है। और आरबीआई ने लाइसेंस इश्यू करने के पहले इन सब कंपनियों के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसको रेगुलेशंस बोलते हैं। और वो रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि एक्सीडेंट्स आरबीआई ने काफी देखे हैं। उन रेगुलेशंस को ये जितनी भी कंपनी है, जैसे लेन देन क्लब है, यदि हमें लाइसेंस मिला 2018 में, तो जो भी रेगुलेशंस या नियम कायदे बनाए आरबीआई ने, उन नियम कायदों को हमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करके उसको समाहित करना था।
तो जो भी नियम कायदे बनाए आरबीआई ने, उसको हमने डिजिटलाइज करके एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको कोई P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। दीपक एक बार पीछे स्लाइड पे जाएंगे आप, जहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट था, और पीछे, हाँ ये वाला। ये अभी जो बीच में आपको लेन देन, आगे, हाँ ये वाला, होल्ड डाउन। सो ये दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं इस पर थोड़ा सा फोकस डालना चाहूंगा। तो लाइसेंस लेने के बाद P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो भी नियम कायदे हैं, रेगुलेशंस है, उसको डिजिटाइज करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है जिसको कि P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ये जो बीच में आपको लेन देन क्लब दिख रहा है, ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे पूरा लॉन्च करने के बाद ये लोग हम लोग इन्वेस्टर्स को, लैंडर्स को इन्वाइट करते हैं। यदि आपको ब्याज पे पैसा लगाना है, यदि आपको ब्याज पे पैसा देना है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। आपको जो भी मार्केट में रेट मिलता है, सपोज 7-8 टका मिलता है, 6-7 टका मिलता है, उससे 3-4 टका का ओवरऑल मार्जिन ज्यादा मिलेगा। ऐसे लोग जो थोड़ा रिस्क को समझते हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ब्याज पे पैसा लगाने के लिए आते हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इन्वेस्टर्स दिख रहे होंगे। तो लेन देन क्लब इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करता है। उनके लिए केवाईसी होता है, जो भी आरबीआई ने गाइडलाइंस दिया है, वो केवाईसी होने के बाद में इन्वेस्टर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड होते हैं और कंसेंट देते हैं कि मुझे ब्याज पे पैसा लगाना है। अभी राइट हैंड साइड पे आपको बोरोवर्स दिख रहे होंगे। ऑन द राइट हैंड साइड वी आल्सो इनवाइट बोरोवर्स। यदि आपको ब्याज पे पैसा चाहिए तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, लेकिन प्लेटफॉर्म पे आने के पहले ये सारे बोरोवर्स को एलिजिबल बोरोवर्स की कैटेगरी मानना पड़ता है, क्योंकि पैसा यदि बढ़ रहा है तो कोई भी लेने आ जाएगा, और कोई भी लेने आ जाएगा तो रिस्क काफी है। तो इसके लिए जब बोरोवर्स आते हैं तो हमने बहुत सारे हर्डल्स बना रखे हैं। एक क्रेडिट पॉलिसी बना रखी है, उसके अंदर यदि कोई पारित होता है तो एलिजिबल बोरोवर बनता है। तो इस तरह से ये P2P लैंडिंग का पूरा बिजनेस चलता है। इसमें 2-3 रिस्क है कि सबसे पहला रिस्क तो यह है कि जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, वो इन्वेस्टर्स के पैसे को के साथ कुछ खिलवाड़ ना करे। इसके लिए आरबीआई ने जब गाइडलाइंस बनाया तो उन्होंने एक बात बोली कि कोई भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स के पैसे के हाथ नहीं लगाएगा। सबसे पहले आरबीआई ने बोला कि कोई भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स के पैसे को हाथ नहीं लगाएगा। इसलिए उन्होंने मैकेनिज्म लॉन्च किया, एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म। एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड होती है, उसके थ्रू पैसे का आदान प्रदान होता है, और ये जो ट्रस्टी कंपनी है, इट शुड बी मैनेज्ड बाय आरबीआई ओनली। ये आरबीआई के रेगुलेशन में आनी चाहिए। इन आवर केस द ट्रस्टी कंपनी इज आईसीआईसीआई बैंक ट्रस्टी। ये पूरा अकाउंट मैनेज करते हैं, इस अकाउंट के थ्रू पूरा पैसे का आदान प्रदान होता है। तो जो पहले सबसे बड़ा रिस्क था कि कोई भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर के पैसे के साथ खिलवाड़ कर सकता है, वो आरबीआई ने डे 1 पे 0 कर दिया। दूसरा रिस्क इसमें क्या है कि जो बोरोवर्स हैं वो पैसा लेके चल जाए, पैसा नहीं दे। इसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म है, वो दीपक आपको डाउन द लाइन बताएगा। आई वांटेड टू थ्रो लाइट ऑन P2P concept which has been covered in that last 1 minute itself. Deepak, you can continue now. श्योर सर, श्योर। तो जैसे सर ने अभी बताया कि हमारे पास एक बहुत ही संचालित, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क यहाँ पर आरबीआई ने हमको बोला गया था कि एस्क्रो अकाउंट के थ्रू आप ये सारा पैसे का लेन देन करेंगे। तो जैसे सर ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक हमारा ट्रस्टी है यहाँ पर, तो आईसीआईसीआई बैंक एक हमारे सारा उसके थ्रू उसकी नॉलेज में जो भी हमारा पैसे का आदान प्रदान होता है, सब उसकी नॉलेज से होता है। क्योंकि एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है कि जहां पर को एक तीसरा मतलब मीडिएटर की तरह काम करता है कि सारा फ्लो विथ क्रेडिबिलिटी सारा हो रहा है बोल के। तो इसमें लेन देन क्लब के पास वो एक्सेस ही नहीं होता है उस पैसे का। वी जस्ट इंस्ट्रक्ट द बैंक, ओके दिस मनी हैज टू गो हेयर करके, तो उस हिसाब से वो सारा फ्लो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास जो ये पैसे, जो हमारा जो रिस्क मैकेनिज्म है, हम लोग उसमें क्या करते हैं, हमारे पास जैसे किसी एक का इंडिविजुअल इन्वेस्टर का पैसा है, तो हम उसको एक हाइपर डाइवर्सिफिकेशन मोड पे उसको डिसबर्स करते हैं। और जो हम हाइपर डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, वो हम करते हैं करीब जैसे किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो हम उसको करीब 50,000 इंडिविजुअल बोरोवर्स के पास वो पैसा देते हैं। अब लेकिन जब वो बोरोवर हमारे पास आता है, तो उस बोरोवर को सेलेक्ट करने का हमारा एक मैकेनिज्म होता है।
मैं अभी एक बार आई जस्ट थ्रो अ लाइट ऑन हाउ वी सेलेक्ट दोज क्रेडिबल बोरोवर्स वहां पर को। दिस इज द स्लाइड विच सेज दैट हम लोग कैसे असेसमेंट करते हैं अपने बोरोवर्स का। हमारे बोरोवर्स को वी इवेल्युएट ऑन मोर देन 600 डेटा पॉइंट्स। उसमें उनके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे लेवल 1 थ्रू ईमेल, एसएमएस पार्सिंग, ईमेल पार्सिंग, जियो लोकेशन, डेमोग्राफिक डिटेल्स। उसके बाद हमारा उसका पूरा क्रेडिट ब्यूरो चेक होता है। वी आर पार्ट ऑफ द क्रेडिट सिस्टम सारा, बिकॉज आरबीआई ने डायरेक्ट किया हुआ है सारे एनबीएफसीज और सारे बैंक्स को कि जितने भी आपके पास जो भी डेटा सिस्टम है वो शेयर होगा आपस में। बिकॉज अगर वो शेयर नहीं होता है तो वो एक सिस्टमैटिक रिस्क क्रिएट कर देता है। आई मीन नहीं तो कोई भी बोरोवर एक जगह से पैसा लेके वहां नहीं देके दूसरी जगह से पैसा ले सकता है। बट आवर सिस्टम हैज बिकम सो रोबस्ट दैट जितना भी डेटा है वो सारा डेटा शेयरिंग होता है। तो क्रेडिट ब्यूरो के थ्रू हमारे को उसका पूरा रीपेमेंट कैपेबिलिटी, उसकी क्रेडिट हैबिट्स पता चलती हैं कि वो उसने कितनी बार क्रेडिट इंक्वायरी करी, उसका पूरा क्रेडिट हिस्ट्री, और जो उसका बैंक स्टेटमेंट है डिजिटल बैंकिंग स्टेटमेंट के थ्रू कि उसकी इनकम कितनी आ रही है, उसने कभी कितना बैंक वेरिफिकेशन किया है, कभी फ्रॉड किया है, ये सब नहीं किया है। तो देयर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट्स जिसके थ्रू हम ये सारा कुछ चेक करते हैं अपने बोरोवर्स का। और ये बोरोवर्स अब हमारे पास आते कहाँ से हैं? हमारे पास जो बोरोवर्स आते हैं वो हमारी पार्टनरशिप है फिनटेक्स के साथ, जैसे भारत पे, गूगल पे, पोस्ट पे, फोन पे। ये लोग क्या करते हैं इन दिस डिजिटल इकोसिस्टम, हमारा टाई अप है इन लोगों के साथ। तो दे प्रोवाइड अस बोरोवर्स और हम उनको फिर आगे लोन प्रोवाइड करते हैं। तो जो ये पैसा कोई इन्वेस्टर हमको देता है तो वो पैसा कहाँ-कहाँ जाता है? मैं एक बार आई जस्ट थ्रो लाइट ऑन दैट थिंग आल्सो कि सपोज किसी इन्वेस्टर ने हमको पैसा दिया, वो मेजरली तीन हमारे प्रोडक्ट्स हैं जहां वो पैसा जाता है, उसको बाइफरकेट करके यहाँ पर को स्लाइड में दिख रहा है। पहला हमारा होता है जैसे पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के लिए हमारा वी हैव आवर ओन लोन ऐप व्हिच इज कॉल्ड इंस्टा मनी ऐप, जिसमें हम पर्सनल लोन डिसबर्स करते हैं। और उसके बाद जो बाकी दो हमारे मेजर कैटेगरीज होती हैं, एक मर्चेंट लोन्स की कैटेगरी होती है, एक बाय नाउ पे लेटर बीएनपीएल वाली कैटेगरी होती है, हम वहां पर देते हैं। तो ये जो हम लोन्स डिसबर्स करते हैं हमारे बोरोवर्स को, वो हमारे जो अभी पिछली स्लाइड में हमने हमारे पार्टनर्स देखे थे फिनटेक के, हमको वो वहां से मिलते हैं। अब जैसे अब मैं एक मनी फ्लो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके किसी इन्वेस्टर ने आपको पैसा दिया, अब वो पैसा हमारा ये तीनों कैटेगरी में बंटता है। अब तीनों कैटेगरी में बंटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने बाय नाउ पे लेटर एक जो कैटेगरी है, इसमें मेजरली एक सैलरीड आदमी ही आता है। और आजकल एक डिजिटल लेंडिंग के प्लेटफॉर्म पे बीएनपीएल इज अ बिग थिंग दीज डेज। इसमें क्या होता है, आदमी ने कोई चीज खरीद दी है, सपोज कोई मोबाइल खरीदना है, कोई गैजेट खरीदना है, ही विल बाय दैट थिंग, वो खरीद लेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे ईएमआई के थ्रू वो आगे पे करता रहेगा। तो ये फैसिलिटी आजकल प्रोवाइड करते हैं जो भी फिनटेक एप्स हैं और वेबसाइट्स हैं, ये हमारे इनके बैकएंड पे जो भी फाइनेंसिंग होती है, वी हैव आवर पार्टनर्स, हम उनको आगे फाइनेंस करते हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अर्ली वेज एक्सेस। जैसे आगे क्या होता है, हमारे पार्टनर्स के थ्रू ही हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम पे जैसे किसी ने 20 दिन काम किया, उसको ये है कि सैलरी खत्म हो गई है, लास्ट के 10 दिन के लिए उसको कुछ पैसा फाइनेंस चाहिए। तो एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो वहां पर कोई इंक्वायरी डालेंगे, उनको उनकी एसेसिबिलिटी देखी जाएगी कि इज ही अ क्रेडिबल बोरोवर, तो वो पीछे से डिमांड हमारे पास आती है, फिर देन वी प्रोवाइड दैट मनी। और जैसे ही उनकी सैलरी वापस आएगी, फर्स्ट वी विल गेट आवर ईएमआई, उसके बाद वो पैसा उनके पास जाएगा जिन्होंने वो पैसा हमसे लिया है। Then there is a third category which is called merchant loans and micro financing loans. इसमें हम लोग स्मॉल बिजनेस सेटअप्स को लोन देते हैं, एंड स्मॉल बिजनेस सेटअप्स आर अ वेरी क्रेडिबल सेटअप सिस्टम, आई वुड टेल यू, बिकॉज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री। अगर आप देखेंगे हमारे देश में एग्रीकल्चर के बाद छोटे दुकानदार ही करीब 25 करोड़ के आसपास हमारे देश में ऐसे छोटे दुकानदार अवेलेबल हैं। तो इनको क्या होता है, सपोज किसी दुकानदार को ये है कि दिवाली का सीजन है, होली का सीजन है, या कोई भी सीजनल कोई भी उसको टाइम लगता है कि अभी मैं अपना स्टॉक बढ़ा लूंगा थोड़ा, और इस टाइम पे मैं अगर थोड़ा पैसा कहीं से मिल जाए, सपोज कोई दिवाली आई, उसको लगा 50,000 का मैं स्टॉक डाल लूं और मैं अगले 15 दिन में इस 50,000 के 1.5 लाख 2 लाख रुपए बना लूं, और मैं फिर ये पैसा आराम से 3 महीने 6 महीने में पे कर सकता हूँ। तो ऐसा सिस्टम एक बना हुआ है हमारे वही जो फिनटेक पार्टनर्स है उनके थ्रू। तो वो वहां इंक्वायरी डालते हैं और फिर उसके बाद वो हमारे पास आता है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे
फोन पे एक हमारा पार्टनर है, अब उसके पास आप लोगों ने देखा ही होगा आजकल हर एक शॉप में, हर एक दुकान पे क्यूआर कोड स्कैनर्स अवेलेबल होते ही होते हैं। तो वो क्यूआर कोड स्कैनर जब वो जाते हैं तो उनकी केवाईसी ऑलरेडी हो रखी होती है। तो कोई दुकानदार है, उसको वो फैसिलिटी वहां उसके ऐप पे अवेलेबल होगी, फोन पे के ऊपर एक फॉर एग्जांपल, कि उसको आज इतना पैसा चाहिए। तो फोन पे हमको एक डिमांड देता है पीछे से, बोलता है कि मेरे पास 1 करोड़ का लोन का रिक्वायरमेंट आया है, आप प्रोवाइड कीजिए। तो पहले तो उनकी केवाईसी के थ्रू वो चीज होती है। बाकी बीइंग पार्ट ऑफ दैट डेटा सिस्टम, व्हाट वी डू इज लाइक वी गेट टू नो देयर रीपेमेंट कैपेबिलिटी। क्योंकि क्या है, वो जो क्यूआर कोड स्कैनर लगे हुए हैं उन सबके, उनसे उनका डेली का गल्ला पता चल जाता है हमको। सो वी नो दैट वो सेटअप हमको वो रीपेमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसका बिहेवियर कि वो उसकी शॉप वो किस टाइम चलती है, कितनी बिजी रहती है। तो ऑल दिस डेटा पॉइंट्स पुट टुगेदर वी गेट टू नो कि इफ दैट मनी विल कम बैक टू अस और नॉट। फिर हमारे वो असेसमेंट उसके अंदर वो जब वो फिल्टर आउट होता है तो उसके बाद हम उसको लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड जैसे आई जस्ट टोल्ड यू, जैसे फोन पे हमको बोलता है कि 1 करोड़ का मेरे को लोन का वो आया रिक्वायरमेंट, देन वी डोंट प्रोवाइड 1 करोड़ का पूरा वो। When we put filters, we give somewhere around 20 to 25 lakh only, क्योंकि उसमें हमारे भी पैरामीटर्स लगे होते हैं। So these are the basic things what we do to जो रिस्क को कम करने के लिए ऑन द असेसमेंट लेवल, ये चीज हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद जब ये पैसा, जब हम डिसाइड करते हैं कि ये पैसा किन किन के पास जाएगा, फिर एक आरबीआई ने जब गाइडलाइन जब दी थी, तो आरबीआई ने बोला था कि किसी भी एक आदमी का पैसा आप किसी भी एक आदमी को नहीं दोगे। तो उन्होंने बेसिक ही जो डिसबर्समेंट लेवल पे बोला गया था कि कोई अगर एक इन्वेस्टर पैसा देता है तो एज पर आरबीआई कम से कम 20 लोगों के पास वो पैसा जाना चाहिए। उनका पॉइंट ये था कि ये पैसा डाइवर्सिफाई जितना होगा उतना रिस्क कम होगा किसी भी एक इन्वेस्टर का। तो हम उससे एक नॉच और आगे जाके हम इसको 20 नहीं और भी ज्यादा तरीके से इसको हाइपर डाइवर्सिफिकेशन के मॉडल पे इसको और ज्यादा लोगों को बांटते हैं। एंड आर यूएसपी, आई वुड से लेनदेन क्लब की जो यूएसपी ही है, दैट इज हाइपर डाइवर्सिफिकेशन ओनली। हम लोग क्या करते हैं, वी डाइवर्सिफाई मनी 99% ऑफ द मनी अप टू 100 रुपीज। अब मैं इसका एक व्हाई एम आई सेइंग अप टू 100 रुपीज, इसका एग्जांपल ये है कि सपोज किसी ने 1 लाख रुपया दिया हमको, तो वही हमने पहले उसका असेसमेंट किया वहां पर, क्योंकि इज ही अ क्रेडिबल बोरोवर नॉट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू, वही डेटा पॉइंट्स के थ्रू हमारे उस पे वो सिस्टम पे आया। तो व्हाट वी विल डू इज लाइक सपोज समवन हैज इन्वेस्टेड 1 लाख रुपी फॉर 1 ईयर टेन्योर विद अस। तो हम लोगों को पता होगा कि हम इसका एक जो इन्वेस्टर का जो पैसा है, हम इसको कितने लोगों को कितने बार उनको देंगे, आगे लोन साइकिल्स में बांटेंगे, और कितने ज्यादा लोगों को दे सकते हैं कि हमारे पास एक इजी रिटर्न हमारे पास वापस आ जाएंगे बोल के। तो हम वो पैसा करीब 50,000 इंडिविजुअल बोरोवर्स को देते हैं। 50,000 इंडिविजुअल बोरोवर्स सुनने में बहुत ज्यादा लगता होगा, बट इन लेनदेन वी हैव गॉट रजिस्टर्ड बोरोवर्स अप टू 70 लाख। तो हमारे पास एम्पल बोरोवर्स रहते हैं टू गिव दैट मनी। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि सपोज किसी ने पर्सनल लोन 15,000 या 20,000 का मांगा हमसे, तो हम उसको उसको एक ही बंदे का पैसा जाएगा, उसके बाद मल्टीपल लोगों का पैसा जाएगा। सो किस तो ओवर हियर द रिस्क गेट्स डाइवर्सिफाइड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। तो ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन साइड हो गया वहां पर को। अब ये हमारा एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है जहां पर वो यू कैन सी वी हैव अ कलेक्शन साइड आल्सो, जहां पर हम एंड टू एंड जो रिकवरी मॉडल है वो भी होता है हमारा। हमारे पास एक इन हाउस कलेक्शन टीम है और हमारे पास प्रॉपर एक कस्टमर सपोर्ट रहता है। वी हैव अ प्रॉपर क्रेडिट अंडरराइटिंग टीम, जिसमें हम लोग पूरा एक अंडरराइटिंग मैकेनिज्म है जिसमें हम बोरोवर्स का डेटा पॉइंट एसेस करते हैं। और हमारे पास एक पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम है जहां पर को लोन डिसबर्सल से लेके ईएमआई का जो वापसी है वो सब कुछ होता है। एंड वी आर वेरी कंप्लायंट ऑन दी लीगल कंप्लायंस साइड, जहां पर हमारे ई लोन एग्रीमेंट्स और नैच मैंडेट्स ये सब होते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर जैसे हमारे साथ इन्वेस्ट करता है, सो द ट्रांसपेरेंसी लेवल इज सच कि वो हमारी वेबसाइट पे या हमारे ऐप पे जाके ही कैन व्यू ईच ऑफ हिज बोरोवर्स ओवर देयर कि उनका पैसा किन किन के पास गया है, टू दी एक्सटेंट दैट वो उनका एग्रीमेंट तक देख सकते हैं कि उनके साथ क्या एग्रीमेंट है, उन्होंने कितना पैसा लिया है। एंड दिस इज ऑल एज पर दी आरबीआई गाइडलाइन, जो हम आरबीआई के कंप्लायंस को फॉलो करते हैं। उन्होंने बोला है कि ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर, उसके हिसाब से हम ये सारा कुछ फॉलो करते हैं। एंड दिस देयर इज एन इन्वेस्टर सेंट्रिक अप्रोच जो हम लेनदेन क्लब में यूज करते हैं। यहाँ पर हम इन्वेस्टर से कोई फी चार्ज नहीं करते। देयर इज नो फी विच इज चार्ज फ्रॉम द इन्वेस्टर्स।
लेन देन क्लब तभी चार्ज करता है जब हमारे इन्वेस्टर्स अर्न करते हैं। एंड इन आवर कंपनीज हिस्ट्री फ्रॉम 2015 वी हैव हैड 0% प्रिंसिपल लॉस, और हमारे हर इन्वेस्टर ने डबल डिजिट रिटर्न बनाया है अभी तक। तो ये तो दिस वाज आवर क्रेडिट असेसमेंट सिस्टम। और एक छोटा सा आई वुड वांट टू थ्रो लाइट ऑन दी एनपीए साइड। एनपीए हमारा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पैसा जो दिया है वो कितना हमारा चांस है जो हमारा वापस नहीं आया बोल के। एंड ऑन दी बिकॉज वी आर ट्रांसपेरेंट, सो वी पब्लिश दिस डेटा ऑन आवर फैक्ट शीट ऑल्सो, और हर महीने हम ये डेटा आगे पब्लिश करते हैं कि हमारा कितना परसेंटेज एनपीए है। और लेंडिंग बिजनेस में होने का मतलब ये है कि एनपीए होगा ही होगा, सो वी विल इनकर एनपीए। So what happens is, like, if you can see, our NPA levels are below 3% only throughout. It is just that during COVID time, हमारा जिस टाइम पे सबसे बुरा अभी तक की कंपनी की हिस्ट्री में हमने देखा था, उस टाइम पे हमारा जो NPA था that went up till 5.9%, वो भी उतने बुरे टाइम पे, but we were still able to give our investors double digit return, और हमने सारे इन्वेस्टर्स को अपना उनका जो भी पैसा हमने कमिट किया था वो वापस दिया था वहां पर। और this is a small chart which is showing the presence in pan India, जो भी हमारा सब जगह हमारा प्रेजेंस है, इन्वेस्टर बेस जो हमारा है on north, west, south and east, everywhere. So these are this is the okay, एक छोटा सा I'll just share what the opportunity is. हमारे यहाँ पर को करीब 87 लाख करोड़ हमारे लो यील्डिंग एसेट क्लास में पैसा लगता है। लाइक वी पुट मनी इन एफडीज एंड लो लाइंग, जो भी हमारे एनबीएफसीज के जो भी हमारे डिपॉजिट होते हैं लाइक बॉन्ड्स एंड ऑल, सो दे आर वेरी इन्फ्लेशन को ही बीट करना मुश्किल हो जाता है कई बार। हमारा जो इन्फ्लेशन लेवल है वो भी अभी तो हमारा काफी कंट्रोल पे है, इट कैन गो अप टिल 5% 6% ऑल्सो। तो कभी कभी हमारा जो पैसा है वो रियल टर्म्स में ग्रो नहीं करता है। सो दिस कैटेगरी विच हैज कम अप, ये क्योंकि देखिए हम फाइनेंस इंडस्ट्री में है, वी आर आल्सो ग्रोइंग एज एन इकोनॉमी, एज एन इन्वेस्टर्स आल्सो, आवर पोर्टफोलियोज आर आल्सो ग्रोइंग। तो ऐसे ही हमारा, जैसे अगर हम थोड़ी अपनी हिस्ट्री पीछे को जाके देखें तो पहले टाइम पे शायद हम अपना पैसा खाली सेविंग्स अकाउंट में ही रखते थे, उसके बाद एफडीज में हमने थोड़ा बहुत अपना पैसा रखना स्टार्ट किया। जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी रेट बढ़ा, हम लोग फिर उसके बाद वी मूव टुवर्ड्स इक्विटी, फिर म्यूचुअल फंड्स की तरफ आए, फिर उसमें भी हम डेट फंड्स की तरफ आए। तो ये एक एवर चेंजिंग एक एनवायरनमेंट है जहां पर हमारा पोर्टफोलियो भी हम एज पर आवर इकोनॉमी, एज पर द सिस्टम्स, वी विल नीड टू असेस आवर हमारा कि हम अपना पोर्टफोलियो कहां पर को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज स्मॉल नंबर विच इज डिपिक्टिंग कि ये मार्केट कैसे ग्रो कर रही है। दिस इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 22% CAGR। ये मार्केट को हम लोग ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि इट विल रीच अप टिल 1 लाख करोड़ बाय 2027। अभी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए हम लोग क्या क्या यहाँ पर को बोल सकते हैं कि व्हाट आर द गुड पॉइंट्स वेयर व्हाट लाइज फॉर द इन्वेस्टर ओवर हियर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट जो है वो इन्फ्लेशन को बीट करता है। देन देयर इज वी आर अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड वेयर यू कैन पुट योर मनी फॉर शॉर्ट टू मिड टर्म, जो भी आपका वो एक ड्यूरेशन रहता है। I'll just इसके बाद में एक बार I'll just throw light on what all our products are, हम क्या क्या ड्यूरेशन के प्रोडक्ट और उसमें क्या क्या रिटर्न आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा हमारा यही है कि जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है वो हमारा पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे रहता है। ये एक स्लाइड है जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में बताता है। हमारा जो प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, विच इज कॉल्ड FMPP, उसमें एक लमसम प्रोडक्ट होता है जिसके अलग अलग टेन्योर हैं। सबसे छोटा टेन्योर जो होता है वो 3 महीने का होता है, वेयर द रिटर्न जो हम प्रोवाइड करते हैं ROI दैट इज 9%, विच इज कैलकुलेट ऑन द एनुअलाइज्ड बेसिस। उसके बाद टेन्योर जाता है हमारा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर। देन वी हैव अनदर प्रोडक्ट जहां पर को हम लोग मंथली इनकम प्रोवाइड करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और मंथली इनकम में हमारा 1 साल का जो प्रोडक्ट है वो देता है 9.5% का यील्ड, 2 साल का देता है 9.75 और 3 से 5 साल 10%। One good thing about our monthly income investment product is that there is no mark to market thing। मतलब अगर कोई भी मार्केट से रिलेटेड कोई भी फ्लक्चुएशन होता है वो इसको इम्पैक्ट नहीं करता है। तो आप लोग अपना कैपिटल यहाँ पर सिक्योर करके अपने मंथली आप एक्सपेंसेस यहाँ पर को टेक केयर कर सकते हो विद आवर मंथली इनकम प्रोडक्ट।
So this is small वो बाकी I would like to say कि अगर बीच में कोई भी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप बीच में पूछ सकते हैं, so that our discussion becomes more engaging उस तरीके से. So I'm ready for the conversation part. अगर किसी को कोई डाउट है, if anyone has any query about anything. आपके जितने भी क्वेरीज है, डाउट्स है, वी आर ओपन टू टेक इट अप. आप एकदम फ्रीली पूछिए, प्रोडक्ट के बारे में, रिस्क के बारे में, रिटर्न्स के बारे में, कंपनी के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, जो भी आपको पूछना है आप बिंदास पूछिए. हेलो सर, आई डू हैव ए क्वेरी. मेरा एक क्वेरी है, जैसे आपका 3 मंथ्स का मिनिमम लॉक इन पीरियड है, तो 3 मंथ्स के बाद ये क्या मतलब ऑटोमेटिकली अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और उसके बाद भी कुछ ट्रांजैक्शन डेट प्लस डेज कुछ ऐसे रूल्स है? हाँ, ठीक है. तो यदि कोई 3 महीने के लिए डालता है प्रोडक्ट में, तो 3 महीने के बाद में एक हमारा वॉलेट है, उसमें ऑटोमेटिकली आपका पैसा आके बैठ जाएगा. यदि आपको अपने बैग में पैसा चाहिए तो आपको एक बटन दबाना पड़ता है. वो बटन दबाने पे 24 घंटे में आपके बैग में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, और 3 महीने में अप टू 9% आपको ब्याज मिलता है. ओके. और आपका जो फिक्स्ड मंथली वाला इनकम है, उसमें शायद मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख से, राइट? जो मंथली इनकम प्लान है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है, 1 लाख है. और जो फिक्स टेन्योर वाले हैं उसमें 10,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है. द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज 50 lakhs एज पर आरबीआई गाइडलाइंस. और अभी शायद ये सेंट्रिसिटी के उसमें ऐड नहीं हुआ है, तो कोई भी अगर करेगा तो फिर कैसे, मतलब उनके डैशबोर्ड में कहीं पे भी वो दिखा नहीं रहा है, तो इंडिविजुअल जाके आपके साइट में साइन इन करके फिर उसके बाद ही कर पाएगा, और कैसे? दीपक. सर अभी हम लोग सेंट्रिसिटी के उसमें जल्दी आ जाएंगे, लेकिन मीनवाइल अगर कोई जैसे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे उनके पास एक्सेस रहता है, हमारी वेबसाइट पे जाके एक सिंपल मोबाइल से ओटीपी के थ्रू लॉगिन से अपना पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं. साथ ही हमारा एक ऐप है लेन देन क्लब के नाम से, उस पे आप अपना सारा पोर्टफोलियो देख सकते हैं सर. सारा तो का सारा. सबसे सरल तरीका सर ये है, एक्चुअली 30th सितंबर इज द डेट जब ये सेंट्रिसिटी के डैशबोर्ड में दिखना शुरू हो जाएगा. सबसे सरल तरीका ये है सर, आप अपने अगर आप यदि आप एंड इन्वेस्टर हैं तो अपने आपके जो रिस्पेक्टिव पार्टनर हैं, आपके जो रिस्पेक्टिव एडवाइजर हैं, आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो ही विल फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन वाया सेंट्रिसिटी. And if you are a partner, sir, you can contact your relationship manager. He will enable the transaction through Centricity. That's not an issue, sir. Okay, right now, even though it is not added and in your centricity. जी हाँ, तो 30th September is the date on Okay, which you will start seeing. But अगर आपको 30th September से पहले देखना है तो you can contact sir. आप you are an investor, sir, or you are an advisor, sir. You are a partner. Yeah, partner. हाँ, तो सर आप अपने आपके सर रिलेशनशिप मैनेजर कौन है, if I may ask? I will discuss it later. Okay, sir. Okay. So you can contact him, sir. They will facilitate the trades. Okay, thank you. हेलो सर. Yeah. हेलो. यस, बोलिए. हेलो सर. आप बोलिए सर. सर ये हाँ जी सर, ये सर एनजे ग्रुप के साथ है या कुछ अलग के है ये? जैसे म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, एएमसी होती है, वैसे लेन देन क्लब एक मैन्युफैक्चरर है जो आपको एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है जिसका नाम P2P लैंडिंग है. एनजे एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जैसे सेंट्रिसिटी है, तो एनजे से इसका कोई लेना देना नहीं है. हम लोग मैन्युफैक्चरर है, एक प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए. अच्छा सर, ये अलग है, उसकी ऐप से माध्यम से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप सेंट्रिसिटी के जो RM है, आप या उनके एडवाइजर, आप उनसे बात करके अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें. सर जो एनजे है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है सर, वेल्थ मैनेजर कंपनी है, और वो P2P एज एन एसेट क्लास वो नहीं प्रोवाइड कराते हैं सर. इट इज एज सिंपल. ओके. P2P प्रोडक्ट्स उनके प्लेटफॉर्म में नहीं अवेलेबल. ओके सर एक क्वेश्चन और है. हेलो सर. एक्सक्यूज मी सर, ये अगर प्रोडक्ट के बारे में बताइए, जैसे आपका एफडी वाला सिस्टम है और क्या क्या है? हाँ, तो
दीपक, वुड यू कवर क्यूमुलेटिव और स्क्रीन खोलना एक बार? यस सर। तो हमारे दो प्रोडक्ट है, एक होता है क्यूमुलेटिव, यदि किसी को 3 महीने के लिए पैसा लगाना है, 1 साल के लिए लगाना है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो एज पर टेन्योर ही कैन पुट मनी। सपोज मुझे 3 महीने के लिए लगाना है, तो आज मैं मेरा सपोज 1 लाख डालता हूँ, तो 3 महीने के बाद में 1 लाख प्लस ब्याज ये मुझे मिल जाएगा। इसको बोलते हैं फिक्स टेन्योर प्रोडक्ट। और जो दूसरा प्रोडक्ट है मंथली इनकम प्लान, काफी रिटायर्ड लोग होते हैं या काफी लोग होते हैं जिनको हर महीने ब्याज चाहिए होता है, उसको बोलते हैं मंथली इनकम। इस तरह से हमारे दो प्रोडक्ट है, क्यूमुलेटिव में 5 टेन्योर है, इसी तरह मंथली इनकम में भी 5 टेन्योर अलग अलग। आप मंथली इनकम 1 साल के लिए लगा सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। Deepak, we have some questions in chat box, so I'll read out for you. So first is, can investor withdraw the money in between if they have some emergency? सो P2P कॉन्सेप्ट आप भी समझते हैं अपन। P2P में क्या होता है, एक आदमी पैसा लगाने के लिए आता है और बोरोवर्स पैसा लेने के लिए आते हैं। बोरोवर्स जो पैसा लेने आते हैं वो 7 दिन से लेके 1 साल के लिए पैसा लेने के लिए आते हैं। अभी P2P में यदि कोई बीच में पैसा मांगने आता है इन्वेस्टर की, मैंने तो 3 महीने के लिए लगाया था, अभी मुझे 15 दिन बाद चाहिए, लेकिन वो पैसा बोरोवर के पास जाके मांग नहीं सकते अपन, बिकॉज बोरोवर तो एक फिक्स टेन्योर के लिए पैसा लेके गया है। तो टेक्निकली इसमें विड्रॉल इन बिटवीन विड्रॉल नहीं हो सकता टेक्निकली। तो आपने 3 महीने के लिए लगाया, तो 3 महीने के बाद ही आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आपने 1 साल के लिए लगाया है तो आपको 1 साल के बाद आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। इन बिटवीन विड्रॉल टेक्निकली पॉसिबल इस प्रोडक्ट में नहीं है। Hello. Sir, I have some questions. हाँ जी सर, पूछिए प्लीज। Can I ask? सर, जैसे आप लोग ये प्रोडक्ट जो अपन सेल करेंगे, इसकी क्या सेल्स पिच होगी कि ये फिक्स डिपॉजिट देंगे जो आप 11% बोल रहे हैं, 12% बोल रहे हैं, ये फिक्स्ड है कि अप टू 11 to 12% है? हाँ, आप एडवाइजर है, इन्वेस्टर है सर? मैं एडवाइजर हूँ। हाँ, जैसे, और आप म्यूचुअल फंड में बेचते होंगे? यस सर। जैसे सेबी म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स को बोलता है कि आपको डिस्क्लेमर बताना जरूरी है, एंड म्यूचुअल फंड में यू कांट कमिट रिटर्न्स। इन द सेम वे आरबीआई ने काफी कुछ डिस्क्लेमर दिया है, इसलिए हमने वो एज पर आरबीआई रेगुलेशंस अप टू लिखा है। बट इन अवर पास्ट हिस्ट्री, यदि आप देखेंगे हमारा फैक्ट शीट जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे यदि हमने अप टू 9 लिखा है, अप टू 11 लिखा है ना, तो उतना रिटर्न इन्वेस्टर को मिलता है। तो सर, इसका मतलब ये है कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि मतलब अब मिल सकता है 11-12% तक 1 साल में। जैसे ये म्यूचुअल कोई फंड में गारंटी नहीं है कि 11-12% मिलेगा ही। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे म्यूचुअल फंड में गारंटी नहीं होती, सेबी ने बोला है, वैसे ही आरबीआई ने बोला कि आप गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन जैसे अपन म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस देके, वैसे यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस देके यदि आप रिस्क, एक लिमिटेड रिस्क लेके उसमें पैसा डालते हैं और पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, तो यदि इस कंपनी ने रिटर्न दिया है नहीं दिया, तो उस लिमिटेड रिस्क को लेके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये एक ऑल्टरनेटिव नहीं है फिक्स्ड डिपॉजिट का, एफडी का। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि यदि आप एफडी में पैसा डालते हैं और 3-4% का आपको अप मार्जिन चाहिए विद लिमिटेड रिस्क, तो आप एफडी का अल्टरनेटिव उसको समझ सकते हैं। पर एफडी में तो एक चीज होती है ना कि गारंटेड इतना मिलेगा, इसमें कहीं गारंटेड है नहीं। बराबर है, गारंटेड म्यूचुअल फंड में भी नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे रेगुलेटर है, और नहीं P2P में है, गारंटी बट यूज नहीं कर सकते। ओके सर, तो फिर इस हिसाब से हमारी सेल्स पिच क्या रहेगी इस प्रोडक्ट के लिए? दीपक सर, बेसिकली देखिए, आप इसमें उन इन्वेस्टर्स को टारगेट कर सकते हैं। सपोज कोई आपके इन्वेस्टर्स हैं जो पहले तो आप उनके पोर्टफोलियो का 5 से 10% का जो भी एलोकेशन है, आप वो यहाँ पर को डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन वाले उसमें। अगर आप इसको सर रिस्क असेसमेंट करें इस प्रोडक्ट का, तो ये दिस इज मच लेस रिस्कियर देन इवन योर जो हमारे डेट फंड्स होते हैं, जो मार्क टू मार्केट की वजह से जो हम आगे प्रेजेंट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इसमें आप वो वाले क्लाइंट्स को भी बोल सकते हैं जो सपोज आज की डेट में सर सपोज मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई टाइप्स, तो किसी को अपने गेन्स लॉक करने हैं,
कि किसी का पैसा 1 साल 1.5 साल बाद चाहिए उनको, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि सर क्योंकि आपको पैसा चाहिए 1-1.5 साल बाद, तो आप आराम से 11% के रिटर्न वाला ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है, जहाँ पर आपका कैपिटल भी सेफ है और आपके रिटर्न भी आपके इतने बन जाएंगे, सो योर मनी कैन बी प्लेस्ड ओवर हियर। सर बाकी इसमें आप देखिए एक सेफ डेट आप ऑल्टरनेट अगर आप देख रहे हैं वो ये है कि जैसे मंथली इनकम वाले आपके वो हैं, जैसे आज एडवाइजर्स ने बैलेंस एडवांटेज फंड्स बहुत आगे एडवाइस करे थे अपने इन्वेस्टर्स को, जिसमें मंथली इनकम होता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सर किसी को हम 12 से 15 महीने के होराइजन पे बैलेंस एडवांटेज फंड सजेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है कि ओके मंथली इनकम तो आती है बट देयर जो कैपिटल है वो थोड़ी फ्लक्चुएट करती है। यहाँ पर को आप वो वाले इन्वेस्टर्स को भी टारगेट कर सकते हैं, उनको भी आप बोल सकते हैं कि आपको अराउंड 9.5-10% तो आपको हम दे रहे हैं मंथली के बेसिस पे विद योर कैपिटल व्हिच इज इंटैक्ट ओवर देयर। इसमें मैं Yes, sir. एक आई विल लाइक टू वे इन, सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा एज एन एडवाइजर, एज अ एमएफडी, एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, आई थिंक द बेस्ट अप्रोच इज टू नॉट से दैट ये इन्वेस्टमेंट एफडी से बेटर है, या एफडी इससे बेटर है, या बॉन्ड इससे बेटर है। इट इज नॉट वन वर्सेस द अदर बट ऑल ऑफ देम इन अ पोर्टफोलियो ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसका भी एक प्लेसमेंट है, इसका जो स्पेसिफिक प्लेसमेंट है वो एफडी प्लस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट का प्लेसमेंट है। जैसे हम बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड भी हम तब करते हैं जब मुझे वीजा, जब मेरे को से इनकम की अपेक्षा है एज कंपेयर टू एन एफडी विच इज मोर और लेस ऑलवेज क्यूमुलेटिव। तो मुझे इनकम चाहिए होती है तो मैं बॉन्ड करता हूँ, अगर मुझे हायर यील्ड चाहिए होती है तो मैं हायर यील्ड बॉन्ड करता हूँ। मुझे अगर लीनियर रिटर्न चाहिए होता है जिसमें मेरे को मेरा प्रेडिक्टेबल रिटर्न है, जैसे एफडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रेडिक्टेबल रिटर्न होती है, कॉर्पोरेट एफडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रेडिक्टेबल रिटर्न होती है, मार्क टू Yes, मार्केट sir. से इसको फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही P2P जो है एक प्रिडिक्टिव लॉन्ग प्रिडिक्टिव लीनियर रिटर्न देने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मार्क टू मार्केट फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने लॉक इन किया है अपना रिटर्न एक एफडी में या एक बॉन्ड में, या मैंने एक लॉक इन किया है अपना रिटर्न एक P2P प्रोडक्ट में, बीच में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, मुझे उस प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे नहीं उसमें उसके रिटर्न में इंपैक्ट नहीं आएगा, आपने रिटर्न उसको लॉक कर दिया। तो एक लीनियर रिटर्न प्रोडक्ट है, एफडी प्लस प्रोडक्ट है P2P। बट अगेन एज एन एडवाइजर द बेस्ट वे टू पोजिशन P2P product is that it is one of the many debt products that should be in a client's portfolio along with FD, along with bond, along with corporate FD, along with many other things. ऐसा नहीं हो सकता कि हम या तो सिर्फ P2P में हैं, या सिर्फ FD में हैं, या सिर्फ म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में है। इट इज ऑल ऑफ देम इन अ स्पेसिफिक रेशियो। तो जैसे इन्वेस्टमेंट का एक रूल होता है कि ऑल योर एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट। बीइंग एडवाइजर हम लोग कोई पैसा लेके आता है तो उसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, इसी तरह एक स्पेसिफिक पैसा उसका P2P में भी जा सकता है। तो सर मेरा एक ये क्वेश्चन था कि मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कुछ मतलब मार्केट नहीं शो करता है अच्छा रिटर्न, तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी मेरा माइनस में शो हो सकता है, मतलब मर सकता है। इसमें आज तक 8 साल हो गया इस इंडस्ट्री को, आज तक किसी ने प्रिंसिपल नहीं तोड़ा है। इसका एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का चार्ट है, दीपक इफ यू कैन ओपन इट अप। हाँ सर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर, क्या मार्केट के हिसाब से ये परसेंटेज वेरिएबल कर सकता है? सबसे पहले मार्केट रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन इसमें यदि हमने जो हमारे एल्गोज है MI/AI/ML के हिसाब से यदि हमने इसमें अप टू 9 लिखा है, अप टू 11 लिखा है, तो हमने आज तक वैसा रिटर्न दिया है। तो इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं इस प्रोडक्ट में। इससे कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, या अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, टेक्निकली हो सकता है। I would add वो स्लाइड से पहले हम लोग इसमें गारंटेड वर्ड नहीं लिख सकते सर। वो स्लाइड से पहले आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। दिस इज आई मीन, क्योंकि सर जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है आरबीआई का भी जो गाइडलाइन का जो बेस था वो था कि इसका एक डाइवर्सिफिकेशन का बेस था। तो और हम भी इसको सर इसको इतना हाइपर डाइवर्सिफाई करते हैं, और इनफैक्ट इन द रिटेल साइड भी डाइवर्सिफाई। आपने नोटिस किया होगा सर, ऑन द रिटेल साइड आपका हमेशा रिस्क अपने आप कम हो जाता है। इफ यू कंपेयर बैंकिंग ऑल्सो, तो आपके जो रिटेल बैंक्स है कंपेयर टू आपके कॉर्पोरेट बैंक्स हैं, उनका आपका जो भी डिफॉल्ट रेट होता है, जो भी आपका पैसे का नहीं वापस आने का जो भी चांसेस होता है, वो रिटेल में आपका हमेशा कम रहता है।
तो उसी के मद्देनजर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे ही सर टेक्निकली इतना एफिशिएंट बन जाता है प्रोडक्ट कि आपके रिटर्न्स हम हर टाइम आपके जो हमने कमिट किए हैं वो आपके रिटर्न्स बन के हम देते हैं। हेलो सर आप लोग दिनेश जी, आप अपना question बीएनपीएल वाले पूछिए, please. क्लाइंट्स को भी लोन देते हैं, है ना? हाँ जी सर। तो उनमें तो मतलब वो तो सबसे ज्यादा रिस्की होता होगा, क्योंकि वो तो बाय नाउ पे लेटर वाले हैं। जैसे सपोज मैं एक 18 साल का लड़का हूँ, ठीक है ना, 18 का हूँ, 20 का हूँ, मार्केट में नया आईफोन आया है, तो मैंने खरीद लिया कि बाद में देख लेंगे यार, किस्त विस्त बाद में दे देंगे, तो उसमें तो अब नहीं दे पा रहा, तो उसमें तो बहुत ज्यादा रिस्की है। स्टूडेंट होके मैंने आईफोन ले लिया बाय नाउ पे, और लेन देन ने मुझे लोन बिल्कुल दिलवा दिया। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर कार्तिक वाशने। कार्तिक जी, हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी तक 70 लाख लोग बोरोवर्स आए हैं। 70 लाख लोगों में से 8 साल में खाली 20 लाख बोरोवर्स को लोन मिला है। उसका एक रीजन है, ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट आया लोन के लिए हर आदमी को लोन मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। ऑलमोस्ट 2/3 लोग रिजेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, 600 पैरामीटर्स, हमारे अलग अलग लोन प्रोडक्ट के अपने रिस्क मैकेनिज्म है। इस तरह से ऐसा नहीं है कि जैसे कोई स्टूडेंट आ गया और उसका कोई क्रेडिट प्रोफाइल नहीं है तो उसको लोन मिल जाएगा। अभी तक हमारे सिस्टम पे 70 लाख लोगों में से 20 लाख लोगों को लोन मिला है, बिकॉज ऑलमोस्ट 2/3 लोग एलिजिबल बोरोवर से नहीं बन पाए थे। वो कहीं ना कहीं हमारी जो हर्डल से 600 पैरामीटर से उसको क्रॉस नहीं कर पाए थे। सर और आज की डेट में क्या होता है, ओके सर। जो भी आपका, जैसे आप बीएनपीएल वाली बात बोल रहे हो, आप यू आर पार्टली राइट ऑन टर्म्स की, ठीक है, बीएनपीएल वाला बंदा वैसे कहीं भी जा सकता है, लेकिन सर एक क्रेडिट हिस्ट्री होती है। आज की डेट में आपका सिविल स्कोर आपके शायद नेटवर्क से भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर आप कहीं भी हमारे सिस्टम पे आप देखिए, धीरे धीरे इतना रोबस्ट हो चुका है कि आप कहीं एक पेमेंट को हल्का सा डेफर करके देखिए, आपका सिविल स्कोर 60-70 पॉइंट से नीचे चला जाता है, और गलती से आप डिफॉल्ट कर दीजिए तो सर आप पूरे सिस्टम में दोबारा कभी भी बैंकिंग सिस्टम में लोन लेने नहीं जा सकते वापस। तो और अभी ऊपर से जो अवेयरनेस इतना बढ़ गया है ना सिविल स्कोर को लेके, लोगों को डिफॉल्ट करने में डर लगता है कि मैंने एक बार डिफॉल्ट कर दिया तो मेरा जो एड्रेस है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, मेरा पूरा परिवार ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा। तो एक वो जो सिस्टम जो गवर्नमेंट ने पैदा किया है, वो अवेयरनेस, वो उसका काफी फर्क पड़ रहा है सिस्टम में। ओके सर, मैं समझ गया। सर एक और चीज थी कि अगर जैसे क्या बोलते हैं कि जैसे कोई क्लाइंट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर डिफॉल्ट करता है तो हम सेबी के पास जा सकते हैं। इधर अगर लेन देन डिफॉल्ट करता है तो हम किसके पास जाएंगे? मैं पहले एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं। सेबी पहले तो इसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर नहीं करते हैं। यदि आप ऐसा सोचना चाह रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में यदि नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं, म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं तो इन्वेस्टर सेबी के पास नहीं जाते। कार्तिक जी, जाता है नहीं, क्या? मेरा मतलब ये था, जैसे अगर कोई कंपनी को बंद होना होता है, जैसे एएमसी को बंद होना होता है, तो उसको पहले किसी को बेचना पड़ता है ना, किसी और एएमसी को उसको खरीदना पड़ेगा। अगर कल को लेन देन को बंद होना है तो इसमें भी वही पॉलिसीज है कि पहले किसी को खरीदना पड़ेगा उसको। और एक यही साइड में क्वेश्चन है कि क्या बोलते हैं, अगर जैसे कल को लेन देन नेगेटिव में होता है तो हमारा जो क्लाइंट का जैसे पैसा है तो उसके लिए कहाँ फाइल की जाएगी? क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो हम सेबी के पास जा सकते हैं, इसमें हम किसके पास जाएंगे? वेरी गुड। आप अब बाद में आए क्या कार्तिक जी, शुरू से नहीं थे क्या? नहीं सर, शुरू से था। हाँ, तो इसमें जब हमने शुरू में चालू किया था ना, बताया था कि जैसे म्यूचुअल फंड में रेगुलेटर सेबी है, इसी तरह P2P का जो इंडस्ट्री है, इसका जो रेगुलेटर है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जी सर। निर्मल जी, थोड़ा सा बीच में टोकना चाहूंगा। विनीत जी का क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जैसे डेट म्यूचुअल फंड में अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उस केस में सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो करके जो एंटिटी स्प्लिट हो जाता है। वैसे सिंस दिस इज अ P2P प्लेटफॉर्म एंड सेपरेट प्लेटफॉर्म, तो ऐसे केस में अगर कोई बोरोवर अगर डिफॉल्ट करता है तो उसका रिकवरी किस तरह से इंश्योर किया जाएगा सो दैट जो इन्वेस्टर्स है उनका पैसा इन्वेस्टर को वापस फिर से मिल सके। आई थिंक दिस वाज योर क्वेश्चन, राइट? ठीक है, इसमें अभी P2P को समझते हैं वापस से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जाना। हेलो सर। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला चार्ट है, आई होप सबको दिख रहा होगा। तो प्लेटफॉर्म लेवल पे
जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म 21% के आसपास रिटर्न बनाता है, उसमें से जो एनपीए है, एनपीए करंट एनपीए 2.66, हम लोग 4% का एनपीए का प्रोविजन लेके चलते हैं और 2% इज प्लेटफॉर्म फी। इस तरह से आपको बीच में 15% के आसपास मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखता है। व्हाट वी आर टेलिंग अप टू 11%। तो आदमी का पैसा कब डूबेगा? जब 10% के आसपास का एनपीए होगा। 10% का एनपीए होगा तब भी उसको 11% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। जो हमारा मैक्सिमम एनपीए था वो कोविड में था 5.9%, जो कि वर्स्ट सिचुएशन था। इसलिए आज तक यहाँ पे 8 साल में किसी ने प्रिंसिपल नहीं तोड़ा है। यदि फिर भी डिफॉल्ट होता है, जैसे अभी एनपीए 2.66% चल रहा है, यदि डिफॉल्ट होता है, ये डिफॉल्ट जो 2.66% आया है, ये आया रिकवरी के बाद में, क्योंकि हमारे लिए जो इन्वेस्टर्स है उसका इंटरेस्ट सबसे सर्वोपरि होता है। उसके लिए हमारे यहाँ पे कलेक्शन टीम होती है, कम से कम 15-20 लोग कलेक्शन टीम होती है, वो पूरा रिकवरी करती है। उस रिकवरी के बाद में एजेंसी के पास जाती है, उसके बाद में ये 2.66 नेट एनपी आता है। ये 2.66 मतलब ये पैसा आने वाला ही नहीं है। इसके बावजूद इन्वेस्टर्स ने 11% के आसपास रिटर्न बनाया है। सर इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ना Hello. चाहूंगा। जैसे अभी सर ने बताया कि हमारे पास ये एनपीए का प्रोविजनिंग वगैरह हम करके रखते हैं, तो अगर एक मैं आई जस्ट शेयर अ स्क्रीन, जो मैं कह रहा था हाइपर डाइवर्सिफाई जब हम करते हैं अप टू 100 रुपीज, तो मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ पोर्टफोलियो का, कि जो आप कोई भी इन्वेस्टर अपनी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट या उस पर देख सकते हैं अपने ऐप में। उसमें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पोर्टफोलियो कैसे दिखता है जब मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये आपका वो हो रहा है। एक सेकेंड, ये इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, तो ये स्क्रीन में एक मैं इलिस्ट्रेटिव मैंने आपको दिखाया, ये मतलब रियल टाइम वो है कि जैसे 10,000 रुपए लगाए थे 3 महीने के लिए, तो उसमें मेरे को 9% पे 225 रुपए मिलने थे। तो यहाँ पर मैं अपना पूरा ये हिस्ट्री देख सकता हूँ कि मेरा पैसा किस किस के पास गया था। और मैं जब हाइपर डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूँ, तो मेरा जो देखिए 100 रुपए से ऊपर मैंने किसी एक आदमी को पैसा दिया ही नहीं। मतलब मेरा जो सबसे ज्यादा रुपया गया वो गया 88.07 रुपीज। सो ही इज द मोस्ट क्रेडिबल बोरोवर जो मेरे जो मेरा पैसा लेके गया। अब सर इसमें देखिए, इसका मैं उसमें सब देख सकता हूँ कि ये कौन है, इसका इनकम क्या है, इसका क्रेडिट स्कोर क्या है, और इसने कितने का लोन लिया और कैसे करके ये रिपेमेंट कर रहा है। तो सर इसमें एक चीज और आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए इसमें जैसे जब मैं बोलता हूँ, जब मैंने बोला 1 लाख रुपया आपका 50,000 लोगों के पास जाएगा, तो इसमें मैं पैसा, ये देखिए 25 रुपए, 1 रुपए तक मैं इसको डाइवर्सिफाई करता हूँ। सर देखिए विलफुल डिफॉल्टर्स आपके पास कभी भी आएंगे, हर लेंडिंग बिजनेस में आते हैं। और ये योर पॉइंट वाज राइट कि अगर कोई आपको पैसा नहीं देता है तो क्या होता है। तो सर इसमें सिचुएशनली ऐसा होता है कि कोई सपोज मेरा एक आदमी डिफॉल्ट कर भी देता है, जो विलफुल डिफॉल्टर है, तो वो किसी एक इन्वेस्टर का, इफ यू लुक एट दी परसेंटेज, वो कितना रुपया ले जाएगा? 8 रुपया, 9 रुपया, 100 रुपए से नीचे ही जाएगा। और मास डिफॉल्ट्स हो नहीं सकते सर अभी हमारे उसमें। सो दिस इज वन ऑफ द रिस्क मिटिगेटिंग स्ट्रेटेजीज जो हाइपर डाइवर्सिफिकेशन में हमको मिलती है। अच्छा, तो इस केस में क्या हेलो। इसका मतलब ये है? हेलो, ओके, तो क्या इसका मतलब हम एज अ पार्टनर ये समझे कि 21% से लोन डिसबर्स किया जाता है, और जब हाँ सर। उसका रिकवरी होता है तो बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिकवरी, तो जो प्लान भले ही लेन देन हमको बोलता है कि अराउंड 9% तक इंटरेस्ट मिलेगा, हो सकता है अगर रिकवरी अच्छी हो तो इन्वेस्टर को 12% का भी रिटर्न मिले। इज दैट यस पॉसिबल? सर, यस ऐसा हुआ है सर, ऐसा होता है। तो यदि हम लोग अप टू 11 पर बोलते हैं ना, तो 11 के ऊपर ही मिलता है। तो हाँ, तो मतलब ये आप उसको इसको बोलिए कि इंडिकेटिव रिटर्न है 9%। यस एक्चुअल यस रिटर्न will vary based on the market performance or the लेन-देन as an organization performance। तो रिकवरी अच्छा हो तो बेस्ड ऑन बोरोवर्स परफॉर्मेंस, ये जो आपने सही बोला, 11, 12, 13% तक भी लोगों को मिला है, 11 से नीचे नहीं मिला है एक साल में। ओके ओके, तो फॉर पार्टनर फैटर्निटी, मतलब लेन क्लब ये बोलना चाह रहा है कि 9% तक का इंडिकेटिव रिटर्न मिलता है, अराउंड 9%, मतलब दैट्स एन एवरेज। बट देर आर केसेस, देर आर टाइम ड्यूरेशंस वेयर इन्वेस्टर्स 10, 11, 12, 13% तक मिला रिटर्न बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ओवरऑल यस बिजनेस। यस 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 वेरी दिनेश जी अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। दिनेश जी।
थैंक यू सर। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे इसके ऊपर। फर्स्ट, ये जो आपने बताया कि एनपीए जो है हमारा हाईएस्ट 5.4 गया था विच वाज ड्यूरिंग कोविड। मैंने एक चार्ट भेजा है जिसके अंदर अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं कोविड टाइम की बात करता हूँ मई 2020 के अंदर, सो वो आर अनसिक्योर्ड लोन जो थे वो अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ के आसपास 2000 नवंबर। आज वो ऑलमोस्ट उसका 80% बढ़ चुका है। उस टाइम पे आरबीआई ने भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करी थी, सभी एनबीएफसीज को बैंक्स को आरबीआई ने लिक्विडिटी काफी दी थी। इस केसेस में अगर आज की बात करूं और जो हमारे जो अगर मैं अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करूं, मैंने एक लास्ट चार्ट जो अभी आपके साथ में डाटा शेयर किया है वो रिसेंट दिसंबर 22 का है, जिसके अंदर मोस्टली अनसिक्योर्ड लोन आ रहा है हमारा क्रेडिट कार्ड पे, कंज्यूमर ड्यूरेबल पे और पर्सनल लोन पे, जो जिसमें से कंज्यूमर ड्यूरेबल क्रेडिट कार्ड जो है P2P का एक पार्ट है, राइट? क्योंकि नॉर्मली पीपल टेक फ्रॉम दैट। और जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में डिफॉल्ट होते हैं वो भी इसी 2 सेक्शन में होते हैं, क्योंकि होम लोन में तो आपकी एसेट अटैच होती है, यू कैन रिकवर, लोन पे नहीं हुआ यू कैन रिकवर इट। इस केस में सर क्या प्रोविजनिंग है और हाउ डू यू सी एट सच काइंड ऑफ अलार्मिंग लेवल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड में हमारा जो एनपीए था वो 5.9% था, और P2P इंडस्ट्री में कोई इन्फ्यूजन वगैरह नहीं होता है। जैसे बैंक्स में एनबीएफसी में आरबीआई ने इन्फ्यूज किया था, वैसा प्रोविजन यहाँ पे नहीं होता है। अभी जो हमारा जो करंट एनपीए चल रहा है वो हम लोग मंथ ऑन मंथ डिस्क्लोज करते हैं, दैट इज 2.66% के आसपास। जो आपने भेजा वो इंडस्ट्री का होगा, बट हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो 2.66% ही है, और ये हमारे वेबसाइट पे मंथ ऑन मंथ जो फैक्ट शीट है उसमें डिस्क्लोज होता है। सर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग जो सर कह रहे हैं। उन्होंने जैसे बताया कंज्यूमर ड्यूरेबल की साइड पे ज्यादा रिस्की होता है, और जो भी आपने जो डेटा शेयर किया उस वाले हिसाब से सर वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस डेटा जो आप बोल रहे हो कि क्रेडिट कार्ड वाली साइड पे ज्यादा रिस्क होता है, और जो भी सैलरीड पीपल लोग हैं दे आर अब उनकी नाक तक बैंक लोन उनको देने को तैयार रहता है। सो सर अभी करेंटली मैं आपको बताऊंगा, आज की सिचुएशन बताता हूँ, और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वेयर वी आर हेडिंग ऑल्सो। आज की सिचुएशन में करेंटली सर हमारे पास जो बीएनपीएल कैटेगरी है इट इज द लीस्ट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जस्ट अभी मैं चाय तुम्हारे पिताजी ने कहा जमीन है जबरदस्ती पिला दी, माने नहीं तो अनुज कैन यू आप प्लीज सबसे पुट इट ऑन रिक्वेस्ट है, म्यूट? नहीं तो मैं म्यूट करूंगा ना तो दीपक भी म्यूट पे हो जाएंगे। अच्छा अभी अब प्रॉब्ली यस नाउ इट इज फाइन। सो मैं जो बोल रहा था कि सर आज की सिचुएशन में जो हमारा बीएनपीएल कैटेगरी है दैट इज द लीस्ट रिस्की कैटेगरी राइट नाउ। जो हमारा ओवरऑल एनपीए होता है उसमें से 0.02% का जो एनपीए है वो हमारा बीएनपीएल में होता है। बाकी हमारा पर्सनल लोन और जो मर्चेंट लोन्स है दे आर नियर अबाउट 4% के आसपास का एनपीए, तो एवरेज हमारा 2.66 आता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सर हम क्या कर रहे हैं। इफ यू विल सी यू आर राइट, क्योंकि जो ये बीएनपीएल सैलरीड क्लास वाला चीज होता है वो कंपैरेटिवली अनसिक्योर्ड है, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे मर्चेंट लोन्स को अगर हम जरा टैप करते हैं तो मर्चेंट लोन्स दे आर काइंड ऑफ बैक्ड बाय देयर स्टॉक्स, देयर एसेट्स। एक तरीके से ये एसेट बैक्ड हो जाते हैं। तो धीरे धीरे अगर आप हमारा पिछले महीने की फैक्ट शीट देखेंगे और अभी की फैक्ट शीट देखेंगे तो यू वुड सी आर बीएनपीएल कैटेगरी में हमने थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन किया है, और हमने सेकंडली उसको आगे आरबीआई जाके मर्चेंट लोन्स ये में डाला है। लाइसेंस दोगे किसी वजह करके दोनों क्रिप्टो ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਚ ਰਿਸਕ ਆਰਬੀਆਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। Vinay, can you put yourself on mute please? हेलो हाँ जी सर, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज लाइक वी आर असेसिंग द मार्केट। जैसे आपने सर डेटा दिया, वी आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल व्हाट माइट हैपन आल्सो, एंड आरबीआई इज आल्सो देयर टू रेगुलेट एंड गाइड अस ऑन ऑल दीज थिंग्स कि हमको कैसे आगे चीजों को बनाना चाहिए बोल के। एंड वी आर टेकिंग स्टेप्स कि जहां पर वो हमारा हम जो कमिट कर रहे हैं आगे हम वो रिटर्न्स आगे बरकरार रखें और देते रहें आगे बोल के। सर वी हैव अ क्रेडिबल क्रेडिट टीम और अंडरराइटिंग टीम विद अस जो हमारा ये सारा कुछ देखती रहती है, और हम जहां पर को हमको ट्रांसफॉर्म होना रहेगा वी विल डू दैट थिंग। एक्चुअली सर थैंक यू फॉर दिस, बट मेरे लिए अलार्मिंग क्या लग रहा था कि अभी मैंने एक डाटा और शेयर किया है जिसमें प्रमोटर सेलिंग का था, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द लास्ट 5-7 ईयर्स, क्योंकि वैल्यूएशंस माइक्रो कैप एसएमईज के ऐसे भागे हैं पिछले ओवर द लास्ट 6 मंथ्स। अगर आप देखेंगे नॉट अबाउट ओनली, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लार्ज कैप मिड कैप, क्योंकि उस इंडस्ट्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट P2P लेंडिंग, उसमें सभी माइक्रो कैप या एसएमई स्टॉक्स हैं। एसएमईज के अंदर 5 टाइम्स फोल्ड में एन नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जो इस तरीके से भागे हैं, और उसके बाद प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल करके साइड में हो रहे हैं कि चलो ठीक है ये
So, I got your so point. again, this is nothing. This is not a market-related product, तो उसका कोई linkage नहीं है यहाँ पे. Yes. On another front, तरुण जी बहुत टाइम से सवाल पूछना चाह रहे हैं. तरुण जी और सीमा जी, पहले तरुण जी पूछेंगे. Thank you. हेलो, थैंक यू जी. हेलो. हाँ, तरुण Yes, जी sir, पूछिए yes, ना. दीपक जी एक चीज पूछना था अभी. आपने 12% क्लब इसके अंदर डाला हुआ है, तो 12% कैसे फंड करता है? और वहां पर 12% वाला जो मैटर है वो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब तो यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है 9.5 से. दूसरा पॉइंट आपने बोला कि इन्वेस्टर जब अर्न करता है तब हम चार्ज करते हैं, उससे पहले चार्ज नहीं करते. तो मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आपस में चीजें. दो पॉइंट्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कि हम ऑफर कर रहे हैं कि यू विल अर्न समथिंग, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम पहले चार्ज नहीं करेंगे, जब अर्न करेगा तब चार्ज करेंगे. व्हाट इज दैट? तो इसमें जो हमने बोला है कि सपोज वी आर टेलिंग इन 1 ईयर इन्वेस्टर विल गेट अप टू 11%. सो इंश्योरेंस की तरह नहीं होता है हाँ कि जी. यदि किसी ने लाख रुपए डाला अभी तो हमने अपना 2% फीस निकाल लिया. 1 साल बाद यदि इन्वेस्टर 11% बनाता है या सपोज 13% बनता है इन्वेस्टर का, तो हम लोग 2% अपना फीस लेंगे और 11% इन्वेस्टर को दे देंगे. यदि इन्वेस्टर का 11% ही बना है तो वी वोंट चार्ज आवर फी. हमारा जो फी है, बिकॉज एज पर आरबीआई गाइडलाइंस हम अपना प्लेटफॉर्म फी चार्ज करते हैं, हमारा और कोई इनकम नहीं है. यदि इन्वेस्टर 11% ही बना पाता है तो हमारा प्लेटफॉर्म फी हम लोग चार्ज नहीं करते हैं. यदि 11 से ऊपर बनता है तो हम हमारा प्लेटफॉर्म फी चार्ज करते हैं. तो वो कहाँ पे ट्रैक करेंगे सर? पार्डन? कहाँ पे ट्रैक करेंगे हम कि हमें चार्ज होना है नहीं होना? कहाँ, मतलब हमारा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है तो कितना चार्ज होना है? तो क्या हमारा बेनिफिट निकल रहा है? हाँ, तो इसमें जो आपका पोर्टफोलियो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पूरा पोर्टफोलियो दिखता है. एंड जो अप टू 11% लिखा है, जनरली जो रिटर्न्स हैं वो 11% के ऊपर ही आता है. यदि सपोज डिफॉल्ट्स कम होता है किसी पोर्टफोलियो में तो किसी को 12 मिलता है, 11.5 मिलता है, 13 मिलता है, वैसा होता है. सर 11 ठीक है. उसके बाद आपने जो डाला, जो 11% की हम जो आप कोट कर रहे हैं, वो आपने 11% फॉर 5 ईयर्स डाला हुआ है. नहीं sir, सर, 12%. अप टू Sir, 11% 1 साल के लिए है और 5 साल के लिए अप टू 12% है. 5 साल के लिए अप टू 12 है. 1 सेकंड सर. I'll just share, sir, that one is fine. तो भैया फर्स्ट ईयर आप नहीं लेंगे सर चार्ज, फिर 11% नेक्स्ट ईयर से चार्ज लेंगे आप, इसका मतलब 11 से स्टार्ट हो रहा है सर आपका 1 ईयर के अंदर. फिर उसके हाँ, बाद 1 ईयर. 11.25, फिर फॉर 3 11.5. फिर हम लोग डायरेक्ट फिर अगर हमने 2 इयर्स के लिए जाना है तो 12% क्लब जो आपका खुद का ही कस्टमर है एज पर योर डिस्क्लोजर, तो वहां पर हम क्यों नहीं जाएंगे? So 12% क्लब they have used our engine only, और वहाँ पे हमने काफी एक्सपोजर कम कर दिया है. ये आप यदि हमारे पास आते हैं तो ये एक रेगुलेटेड P2P NBFC के पास आते हैं. 12% क्लब एक भारत पे का प्रोडक्ट है. They have launched it, they have been using our engine. वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे 12% दे रहे हैं, वो उनका एक लुकआउट है. सर मार्केट में तो 12% का एक हाइप है ना, उस हिसाब से पूछा बस मैं. सर ऐसा है कि आप एक रेगुलेटेड एंटिटी से काम करना चाहते हैं, अनरेगुलेटेड से काम करना चाहते हैं, वो एक इन्वेस्टर या एडवाइजर पर डिपेंड करता है. सर वो 12% हाँ, वो क्लब बिल्कुल में ठीक है सर. आप देखते होंगे कि वहां पर वो कई बार आपका विंडोज होती हैं. You if हाँ you जी. even if you want to invest, you can't invest, and there are times when you want to withdraw, you can't withdraw. तो वो सर उनके अपने एल्गोरिदम होते हैं. बैकएंड पे ऑब्वियसली we are the member of 12% क्लब. तो बैकएंड पे हमारे पास पैसा आता है. They use our systems to assess and कैसे क्रेडिबिलिटी जाएगी, क्या बोरोवर्स को किस हिसाब से पैसा देना चाहिए. बट अल्टीमेटली द फेस ऑफ द 12% क्लब इज भारत पे ओनली. वी आर जस्ट द बैकएंड हाँ जी. साइड ऑफ दैट थिंग. ओके. तो ये जो चार्जेस वाला जो मैंने क्वेश्चन किया, उसके अंदर हम कहाँ ट्रैक कर सकते हैं? कहाँ पे हमारे यहाँ पर, मतलब कहीं पे दिखेगा को पोर्टफोलियो पे? वो आपको एक बार मैप बता देंगे. आपका एक बार सेंट्रिसिटी टीम से रिक्वेस्ट है, इनका नाम लिख लेंगे. जी. वी विल अपडेट देम कैसे कहाँ पे ट्रैक होता है एंड ऑल दैट. ठीक है सर, ओके थैंक यू. ओके. वैसे आपने अच्छा, बहुत अच्छे से बताया, जो जो आपने एक पार्ट क्लियर किया कि आपका इन्वेस्टर का पैसा कहाँ पर जा रहा है और किस कस्टमर को गया है. दैट इज वेरी गुड थिंग. अप्रिशिएट इट. वो प्लीज, थैंक यू पोर्टफोलियो सो मच. आपको वेबसाइट पे भी दिखेगा और मोबाइल ऐप पे भी दिखेगा. सीमा मैम दैट इज अपना वेरी मच क्वेश्चन पीछे अप्रिशिएटेड. प्लीज. प्लीज, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
सीमा मैम, थैंक यू सर। हाँ जी या please. सर सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या क्लाइंट लेन देन के साइट पे जाकर ये डायरेक्टली ले सकता है, और अगर डायरेक्टली ले सकता है तो फिर हम सेंट्रिसिटी एज ए सेंट्रिसिटी हम उसे कैसे इस चीज को अपने थ्रू दे सकते हैं, पहला। मैम एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि जो लेन देन में जैसे लॉकिंग वाला जो पीरियड है, क्या उसमें वो मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ओके मैम, पहला मैं आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको एक बार एड्रेस करता हूँ। हाँ, क्लाइंट मतलब देखिए मैम, वैसे तो वी आर ओपन टू एवरीवन, लेकिन क्या है कि जैसे आप सेंट्रिसिटी के थ्रू हैं, तो एक बार आप क्लाइंट को खाली ऑनबोर्ड कर लेते हैं अपने अपने डैशबोर्ड पे अपने पास सेंट्रिसिटी के साथ। ऑनबोर्ड करने का मतलब है मेरा खाली उनका भले इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और उनका बेसिक पैन कार्ड आधार वाला अपडेट करने वाला है, वो कर देंगे। और भले ही वो इन्वेस्टमेंट अपनी मर्जी से वेबसाइट से करें, फिर चाहे ऐप से करें, तो आप ही के अंडर वो काउंट माना जाएगा। ही कैन डू, एक्सेसिबिलिटी उनको रहती है, लेकिन वो जब भी पोर्टफोलियो आएगा वो आप ही के पास आएगा, बिकॉज वी डोंट हैव अ रेगुलर एंड डायरेक्ट थिंग जैसा म्यूचुअल फंड में होता है, वैसा नहीं है। एक बार बस वो क्लाइंट आपको मैप हो जाएगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से, तो फिर वो आप ही का क्लाइंट है ना, वो कहीं और से इन्वेस्ट कर सकता है, भले ही वो सीमा जी इसका जवाब वैसे तो मोहित विल बी एबल टू गिव बेटर, बट जो दो प्राइमा फेसी मुझे दिमाग में आ रहे हैं वो है रिपोर्टिंग के। सो आप ये समझिए कि लेन देन इज एएमसी, it's a asset, it's on its level it's a asset management company, they are product manufacturers, so these are one of the products that you would advise or you would suggest to your clients, right? This will consist of many other products also, चाहे म्यूचुअल फंड हो या कुछ और हो या कॉर्पोरेट एफडी हो या बॉन्ड हो। तो आइडिया बस ये है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उनका सारा रिपोर्टिंग एक जगह पर हो, और दूसरा जो इनकम के एस्पेक्ट से जो वो है जो एडवांटेज है या जो भी है वो आपको मोहित will explain to you on a one-on-one basis whenever you come to the office next, or he will come and he will call and explain to you, ma'am. ओके नहीं, इनकम का तो सर ठीक है, दैट इज, बट मेरा सिर्फ कंसर्न तो जैसे अगर सपोज मैंने किसी क्लाइंट को म्यूचुअल फंड के लिए ऑनबोर्ड किया है, तो मैं उनको P2P के लिए भी ऑनबोर्ड कर दूं और ये प्रोडक्ट बता दूं। अब सपोज मैंने आज बताया किसी को और वो 6 महीने बाद इसको यूज करते हैं, तब भी वो मेरे साथ ही काउंट होंगे। करेक्ट, करेक्ट मैम, करेक्ट मैम, करेक्ट। ठीक है सर। यस मैम, दूसरा मैं सेकंड ये था कि सर अगर सपोज किसी के पास कोई मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लाइक लॉक इन वाला जो है कि जिसमें हम अप टू 12% का रिटर्न देते हैं, क्या उसको मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि वो उसे हर महीने 10 साल तक 10,000 का? ये वो कर सकता है, वैसे कर सकता है, एंड इन कमिंग टाइम्स वी विल कम अप विद दैट एसआईपी फीचर आल्सो विद अस, जिसमें वो कर सकते हैं। लेकिन करेंटली वो आप, लेकिन अभी मैनुअली करना पड़ेगा उनको। अभी ऑटो सिस्टम नहीं है कि आपको एक डेट फिक्स कर लो और उस डेट पे वो ऑटोमेटिकली उनका पैसा आता रहे। एज ऑफ नाउ आपको जैसे भी मंथली वाला है तो यू विल हैव टू डू दैट मैनुअली। थोड़े टाइम बाद वी आर इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट एसआईपी वाला मॉड्यूल आल्सो, जहां पर ऑटोमेटिकली वो अपने आप मंथली आता रहेगा उनके। तो सपोज अगर कोई इस महीने, जैसे ये सितंबर है, किसी ने सितंबर में 10,000 रुपए कर दिया, तो वो सितंबर 24 को उसका अनलॉक होगा। फिर अक्टूबर में वो मैनुअली करता है, तो फिर उसका अक्टूबर मतलब ईयर तो ऐसे काउंट होता जाएगा ना फिर सर? हाँ मैम, लेकिन मैम म्यूचुअल फंड में भी तो अगर एसआईपी आप देखो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे ही जाती है। ईएलएसएस अगर आप करते हैं वहां पर वो ईएलएसएस भी ऐसे ही आपका जाता है कि वो भी परपेचुअली हर मंथ बेसिस लॉक इन जाता है वो भी, तो मतलब क्योंकि प्रोडक्ट फीचर ही वो चीज है यहाँ उस चीज का। गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। संदीप मित्तल जी, आप प्लीज पूछिए। संदीप जी, देवाशीष जी, हाँ संदीप जी प्लीज। दिस इज अ स्मॉल क्वेरी सर, लाइक ड्यूरिंग दिस डिस्कशन ये बात नंबर ऑफ टाइम्स आई है कि प्रिंसिपल कैपिटल किसी का लूज नहीं हुआ है, इवन ड्यूरिंग कोविड पीरियड जो इन्वेस्टर की अगर हम बात करें। एम आई राइट? राइट सर। हाँ, तो इसी से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है, जो कैपिटल था, इनिशियल कैपिटल, सीड कैपिटल, वो तो लूज नहीं हुआ, लेकिन क्या जो उसको रिटर्न मिलना था उसमें कुछ कमी करके दिया गया है क्या इन्वेस्टर को? सर आई वुड लाइक टू से वन थिंग ऑन दिस।
एक्चुअली क्या होता था, अर्लियर व्हाट इट यूज्ड टू हैपन इज लाइक क्लाइंट यूज्ड टू डिसाइड ऑन देयर ओन कि वो पैसा कहाँ जाएगा, किस बोरोवर के पास जाएगा. Before, suppose you are investing your money, we used to give you that freedom to choose which demographic that client should be. जो borrower है उसका क्या age होना चाहिए, male female, क्या credit score and all those things and all. तो return disparity जरूर होती थी, लेकिन उसमें हम लोग सर जो हम 10 to 12% हम बोल के देते थे, we have given that return to everyone, जो भी डबल डिजिट रिटर्न बने हैं. उसके बाद से क्या हुआ है सर, इन जुलाई 2022 we came up with this FMPP वाला product and we were working on this कि how to make that product which is technically efficient to generate double digit returns, क्योंकि पहले तो मार्केट कम था, छोटा था, and we were also disbursals were less, so we were able to make that return which was like committed ahead. उसके बाद to continue that commitment ahead, we had to come up with something which can technically give you the returns which we are saying. तो जुलाई 2022 में we came up with this thing FMPP, जिसमें hyper diversification के through we can technically generate that return which what we are telling to you, sir. संदीप जी, इसका अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूं, संदीप जी थे ना जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था. संदीप जी, अगर मैं इसका पैरेलल ड्रॉ करूं तो इट्स लाइक दिस कि आप जैसे पहले डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे. डायरेक्ट इक्विटी में ओनस आप पे था कि आपको कौन सा स्टॉक चूज करना है, कौन सा स्टॉक उठाना है, लार्ज कैप उठाना है, मिड कैप उठाना है, चॉइस आपके पास थी. एज कंपेयर टू दैट, अगर आप एक म्यूचुअल फंड में जाते हो तो डिसीजंस आर मेड बाय द फंड मैनेजर. सो एफएमपीपी इज मतलब ऑलमोस्ट दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट जो आपको आपसे डिसीजन मेकिंग का कि आपको एक्चुअली कहाँ देना है वो आपसे ले रहा है. दैट ओनर्स इट इज टेकिंग अपॉन इटसेल्फ. It is giving diversification across various kinds of asset pools, and it is basically taking away your headache of कि identifying कि किसको मुझे देना है. तो actually वो in the literal sense peer to peer नहीं रह गया. मतलब आप नहीं डिसाइड कर रहे हो कि अच्छा मैं उसको दे देता हूँ, उसका क्रेडिट रेटिंग इतना है. You are investing into a product which is taking the decision and taking the onus of delivering the return. So it has become a product. FMPP is a product instead of you having to decide to which person or which avenue exactly आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. तो म्यूचुअल फंड जैसे वो डिसीजन मेकिंग अपने आप पे ले लेता है. आप नहीं डिसाइड करते हो, या पीएमएस में आप नहीं डिसाइड करते हो कि कहाँ करना है. आप एक फंड मैनेजर को एलोकेट करते हो, वो डिसीजन मेकिंग करता है. उसी की तरह है. मेक सेंस. सो मैं जो एक रीड बिटवीन द लाइन अगर करने की कोशिश करता हूं तो शायद मेरे को आंसर इस तरह से मिलता है कि ठीक है, कैपिटल तो इंटैक्ट था, बट जो रिटर्न्स थे वो वेरी करे होंगे, एंड दैट वेरिएशन is because of this onus जो person ने लिया था to decide about whom. सर मैं एक बहुत ही 360 डिग्री बात बोलूंगा, मतलब बहुत ही ब्रॉड बात बोलूंगा कि एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता क्या है कि देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी एंड देयर इज ऑलवेज दैट एलिमेंट ऑफ ग्रीड दैट क्रीप्स इन. इट इज ह्यूमन बिहेवियर. मतलब एवरीबडी इज द सेम. देयर इज नो सच पर्सन जिसको दैट, जैसे मैं डायरेक्ट इक्विटी में बोलता हूँ, कभी कभी हम कुछ बातों में आके, इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके कोई पेनी स्टॉक्स खेल जाते हैं. तो उसमें हमारा वो ये ऑब्जेक्टिव ही होता है क्विक मनी, ओवरनाइट मनी. चाहे उसमें जितना भी रिस्क हम कर लेते हैं, वी काइंड ऑफ इग्नोर द रिस्क. तो इवन अगर मेरे को डायरेक्टली बोल दिया जाए कि अच्छा मैं एक इन्वेस्टर है जिसका क्रेडिट रेटिंग बहुत कम है बट मेरे को वो 24% रिटर्न देगा, तो आई टेंड टू इग्नोर द रिस्क एंड गो फॉर इट. तो एफएमपीपी इज बेसिकली क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट out of it where it will decide on the risk management, it will decide on the the quality of the underlying loans, etc., and will take the onus of risk management on its own to deliver you a set return instead of you deciding अच्छा मैं इसको 24% पे दे दूं या उसको 15% पे दे दूं या उसको 9% पे दे दूं. they are creating products out of it. तो asset management है. so in a nutshell, P2P का asset management company is लेनदेन. One can understand. Thank you. निर्मल जी, आई होप थोड़ा ब्रॉडली मैंने ठीक बोला. Yes, but he was also right earlier because of that greed feature. Generally जो इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट था, that was not like fixed. किसी को 8% मिल रहा था, किसी को 12 मिल रहा था, and all that. So he is also right, and what you have explained in a better way by giving AMC example and all that. Mr. Devashish, you can ask. Yes. तो मेरा जो क्वेरी है, जैसे ये तो मतलब जब कोई
हम एडवाइजर जस्ट लाइक कस्टमर को बोलते हैं, बताते हैं, तो वो करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो उसके हिसाब से सपोज आपका 1 ईयर का है, अप टू 11% लिखा है, तो आपने जैसे अभी तक बताया है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। तो कम हुआ तो फिर डेफिनेटली कस्टमर, चांसेस वेरी कम है जैसे आपने बताया हुआ है, आई अंडरस्टूड। बट अभी कभी ऐसे सिनेरियो हुआ है कि कभी किसी को कम मिला हो और कोई आपका एएमसी चार्जेस या कुछ लग के उन्हें मिलता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। एक ये फर्स्ट क्वेरी है, क्योंकि जो आप कस्टमर को बोलते हो उससे कम होता है तो डेफिनेटली दे विल बी एंग्री ओवर यू एंड दे विल नेवर ट्रस्ट यू, क्योंकि एक ट्रस्ट वाली फैक्टर आ जाती है। और सेकंड, आप जैसे डायरेक्ट बैंक से मतलब अमाउंट डिडक्ट होता है, तो आपका वॉलेट में क्यों जाता है? क्या लॉजिक है उसके पीछे? अगर वॉलेट में ना जाके डायरेक्ट आ जाए तो कस्टमर के लिए कोई माथापच्ची नहीं है, ठीक है, वो ना सोचेगा। अगर वॉलेट में रह गया और सैटरडे को सोचिए वो ट्रांजेक्शन करता है कि रिटर्न के लिए, तो संडे नेक्स्ट डे हॉलीडे है, ठीक है, तो उस केस में क्या आप जैसे बता रहे हो मैंने सैटरडे इवनिंग किया तो मुझे संडे इवनिंग तक मेरे अकाउंट में आ जाएगा अमाउंट? ये 2 क्वेरी है मेरा। सर आई वुड लाइक टू से, जैसे आप कह रहे हैं वैसे जो मैंने पहले बताया कि पहले इन्वेस्टर्स अपना रिटर्न खुद चूज करते थे, जैसे इससे पहले वाली क्वेरी में वो था। लेकिन जब से हमने ये एफएमपीपी बनाया है सर, वी हैव नेवर गिवन लेस देन रिटर्न्स, और किसी भी इन्वेस्टर का उससे कम रिटर्न नहीं बनाया सर। जैसे मैं आपको जो अभी आदित्य सर बता रहे थे कि वो एसेट मैनेजमेंट की तरह ही हम लोग काम करते थे, लेकिन हम उसका हाइपर डाइवर्सिफिकेशन में टेक्निकली वो रिटर्न ज्यादा ही आएगा, वो आपका रिटर्न कम नहीं होगा सर। इट इज आर क्रेडिबिलिटी आल्सो, एंड वी आल्सो आर अ ब्रांड इन दिस इंडस्ट्री, सो दैट विल नॉट हैपन। और दूसरा सोर्स जो वॉलेट वाला आप बता रहे हैं सर, एक्चुअली क्या होता है, जैसे आरबीआई ने बोला है कि ये सारा एस्क्रो अकाउंट के थ्रू होगा, तो एस्क्रो अकाउंट का एक पूल एस्क्रो अकाउंट होता है। तो उसके बाद जैसे ही आप इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करते हैं, तो इन्वेस्टर का एक इंडिविजुअल एस्क्रो अकाउंट बनता है। सपोज एक मेन अकाउंट है, उसके अंदर एक इन्वेस्टर का अकाउंट बना, तो वो वॉलेट की तरह काम करता है कि जिसमें आप जैसे आप डीमैट में आप रखते हैं पैसा, तो इफ यू वांट टू बाय मल्टीपल स्टॉक्स, तो वैसे ही आप यहाँ पर को भी आप मल्टीपल एफएमपीपीज बना सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू विड्रॉ पार्शियल अमाउंट आउट ऑफ इट, वो भी आप कर सकते हैं। और क्या होता है सर, जैसे आपकी मेच्योरिटी, सपोज आज आपकी मेच्योरिटी है, तो आपके वहां पर को आपके वॉलेट में वो पैसा मिल जाएगा, और जैसे आप वॉलेट से आप विड्रॉ करेंगे, आपके 24 घंटे के अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है सर। 24 घंटे और मतलब जैसे मैंने सैटरडे को किया तो संडे के दिन छुट्टी है, तो उस दिन भी ऐसे चांसेस है कि आएगा कि मंडे वो होगा? सर चांसेस है आएगा सर। ये वाला ये आपने पूछा, अच्छा क्वेरी है ये। आपको एक बार टेक्निकली और बार पूछ के बता देंगे कि ठीक यदि है। छुट्टी और है तो जैसे नेक्स्ट डे आएगा नहीं आएगा। यस सर, थैंक यू। और एक है जैसे मतलब आपने बताया 11% से भी ज़्यादा मिला जो भी है, तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव साइन है, अच्छी बात है। और उसके बाद कोई एएमसी चार्जेस वगैरह रहता है क्या, जो हिडन चार्जेस कुछ है ऐसा जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं नहीं हुआ सर, हो? आपने जैसे अभी हमने बताया कि मोबाइल ऐप पे और हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहती है। ये क्या पैसे का लेन देन है और ट्रस्ट का मामला में, इसमें जितना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे ना उतना ही अच्छा है। तो हमारा जो एक ही फीस होता है, हमारा एक ही कमाई होती है जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म फी, इसके अलावा और कुछ नहीं होता हमारा। तो इस केस में जैसे 1 साल के लिए किसी ने किया तो 11% आपका है, तो उसमें प्लेटफॉर्म फीस जो है वो कैसे क्या होता है, कितना? 2%। ओके, तो 11% कस्टमर को मिलना चाहिए, वो मिल जाएगा। जो ज्यादा होगा तो वो आप लोग वहां से डिडक्ट हाँ करके बराबर। वो यदि 13 बनेगा तो हमें 2% मिलेगा, यदि 12 बना तो हमें 1% ही मिलेगा, यदि 11 ही बना तो हमें 0% मिलेगा। और अगर 15 बना तो? 15 बना तो इन्वेस्टर को ज्यादा जाएगा। हो सकता है कि हमारा 2 से कुछ 2.25% हो या कुछ हो, लेकिन ओके, मेजर ज्यादा पोर्शन हो इन्वेस्टर सकता को है। जाता है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, इसीलिए फैक्ट शीट देखेंगे ना आप, उसमें काफी लोगों को 13% मिला है, 13.5% मिला है, लाइक दैट। निर्मल जी, एक्सप्लेनेशन आप फिर से एक बार करें, मतलब प्लेटफॉर्म फी आपका कितना और एक्चुअल रेटिंग का कैसे आप एडजस्टमेंट करते हो? हेलो, हाँ सुनील जी पूछिए, प्लीज पूछिए। हाँ, मेरा अभी ये निर्मल जी बता रहे थे कि मान लो कि सेफ्टी मार्जिन जो है वो 15% है, ठीक है। 15% में लेन देन का इनकम रहेगा 2%, तो मतलब 15 में से 2% माइनस होके 13% इन्वेस्टर्स को जाएगा, राइट। तो ये अगर उनका बेंचमार्क अगर 11% का हो और एक्चुअल रिटर्न भी 11% का आ रहा हो, तो लेन देन को 0% मिलेगा एज अ प्लेटफॉर्म फी, राइट। एग्री, 100%, आप सही है एकदम। तो मतलब अगर एक्चुअल रिटर्न जो भी आ रहा है उसमें से 2% काट के जो भी बचेगा वो सारा इन्वेस्टर को चला जाएगा।
एग्री एग्री एग्री, बराबर बोल रहे हैं आप। All right. And irrespective of tenure, right? तो टेनियर का जस्ट मार्क जो आपके लिए कैलकुलेशन के लिए मेंटेन किया है, तो इन एक्चुअल्स दैट विल बी जस्ट रेफरेंस पॉइंट, राइट? कैन यू रिपीट इट अगेन प्लीज? जैसे मान लो कि आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला 3 महीने के लिए 9% और 1 साल से ज्यादा है तो 11% फॉर 2 इयर्स, एक बेंचमार्क फॉर। अगर इतना अच्छा नहीं होता है तो प्लेटफॉर्म फी नहीं मिलेगा, राइट? भूपेंद्र है कहीं है? दैट इज यस, दैट इज आवर इंटरनल रूल। जी तो परिचित है। वी डोंट चार्ज, यदि इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनता तो हम तो चार्ज नहीं करते। ओके सर ये सबसे दरखास्त है कि आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अलावा जो क्वेश्चन पूछ रहा हो थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, सुन नहीं पा रहे हैं। जो भी लोग अनम्यूट है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और ये का कैलकुलेशन हम वेबसाइट पे देख सकते हैं। हाँ, ये जो भी हमने दिखा रहे हैं फैक्ट शीट आपको हमारे वेबसाइट पे दिखेगा। सेंट्रिसिटी टीम विल आल्सो शेयर विद यू। और यदि किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको अपना पोर्टफोलियो ट्रांसपेरेंसी से दिखता है वेबसाइट पे भी और लेनदेन क्लब के ऐप पे भी। विनोद जी प्लीज क्वेश्चन आप पूछिए। थैंक यू फॉर गिविंग क्वेश्चन अपॉर्चुनिटी। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल रिपीटेटिव है। व्हेन यू इन्वेस्ट उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है और फिर आपने जो ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है उस ईयर का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट आता है वो होता है। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट में तो आपने कहा कि अप टू व्हाटएवर परसेंटेज इज मेंशन्ड वो आपको मिलेगा। अगर बेंचमार्क अचीव होता है तो यू विल गेट फुल परसेंटेज, ओवर अचीव होता है तो शायद यू विल गेट 1 or 2 एक्स्ट्रा परसेंटेज। मेरा सवाल जो है मेरा प्रिंसिपल रिलेटेड सवाल है। आई एम एन एडवाइजर विद सेंट्रिसिटी। मेरा इन्वेस्टर मुझे जो पूछेगा मैं उसे कहूँगा कि ये मतलब बैंक से बेटर ऑप्शन है। तो मेरा सवाल जो है वो यही है कि प्रिंसिपल कैन आई से कॉन्फिडेंटली 100% की प्रिंसिपल अमाउंट P2P लेंडिंग में सेफ है? कैन वी से दिस ऑफिशियली? हमारा प्रिंसिपल सेफ है व्हाटएवर हैपेंस। निर्मल सर यू आर ऑन म्यूट। सॉरी, जैसे म्यूचुअल फंड में एक रूल है, सेबी ने बोला है कि आप इन्वेस्टर को ये कमिट नहीं कर सकते कि आपका प्रिंसिपल सेफ है। इन द सेम वे आरबीआई ने बोला है नो मैन्युफैक्चरर और नो एडवाइजर कैन यूज दैट लैंग्वेज कि आपका प्रिंसिपल 100% सेफ है। तो वो ये सेफ वर्ड, गारंटेड, ये वर्ड ना तो म्यूचुअल फंड में यूज करते हैं अपन, ना ही यहाँ यूज करेंगे। So what we say is like there has been 0% principal loss. मेरा सवाल स्पेसिफिक है, मैंने इंटरेस्ट रिलेटेड कोई नहीं कहा है। मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट सेफ नहीं है। आप कह रहे हैं 11 मिलता है, इन वर्ड सिचुएशन शायद 1% भी ना मिले, तो वो अंडरस्टूड है। बट कैन आई से टू माय कस्टमर्स कि आपका प्रिंसिपल सेफ है? आई थिंक दैट्स अ बिग वर्ड। तो मैं वापस ये क्वेश्चन रिपीट करूंगा और इसका आंसर चाहूंगा आपसे। तो आपका प्रिंसिपल मैं वापस से कंपेयर करूंगा एएमसी से ही कि जैसे म्यूचुअल फंड में भी अपन नहीं बोलते कि आपका प्रिंसिपल सेफ है। इन द सेम वे एज पर आरबीआई गाइडलाइंस वी कांट यूज दैट लैंग्वेज कि आपका प्रिंसिपल भी सेफ है। सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक चीज मैं विनोद जी बोलना चाहूंगा कि सॉरी तरुण जी बोल रहे हैं, तरुण जी का सवाल था। विनोद जी हाँ विनोद जी का सवाल था। सर एक्चुअली जो आपको पता होगा, आप म्यूचुअल फंड से वाकिफ होंगे, द सेफेस्ट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो उससे सेफ कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, इज अ लिक्विड फंड। Safest fund in the country is a liquid fund. Even in the Kim and Sid of liquid fund, it cannot be written that the principal is safe, guaranteed, assured. ये सारे words are strictly no for not only SEBI but for RBI also. Even आप सर म्यूचुअल फंड भी छोड़ दीजिए, even in fixed deposit, even in a bank fixed deposit, it cannot be said that आपका सारा जो कॉर्पस है वो सेफ है। एज पर द लॉ ऑफ द लैंड सर, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस। इफ द बैंक फेल्स, RBI only assures up to 5 lakh rupees of the principal. So that is the extent to which the term has meaning.
Nowhere it can be written, sir, assured, guaranteed, proven और safe. सर ये सारे वर्ड बिल्कुल मीनिंगलेस हैं फॉर द रेगुलेटर. वो कहता है आप लिख देंगे बट वी आर नॉट लाइबल फॉर इट. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें. इट इज नॉट एप्लीकेबल एज फार एज द रेगुलेटर इज कंसर्न. बट इफ यू सी, आपको पता है कि सर लिक्विड फंड में कुछ होता नहीं है. ऐसे ही सर जो कॉन्सेप्ट है, जो रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स हैं इन P2P, स्पेशली इन लेन देन, as per that we can safely say that as per the track record is also there has been no threat as far as principal is concerned, even in the worst of times, even in the worst scenarios such as COVID or any other downturn also. It has not happened before, and we can safely say it will not happen in the future. But as far as these words are concerned, it cannot be mentioned anywhere, it cannot be promised anywhere. चाहे वो बॉन्ड हो सर, चाहे बैंक एफडी क्यों ना हो, चाहे लिक्विड फंड क्यों ना हो, ये वर्ड्स नहीं लिखे जा सकते. बैंक एफडी में तो फिर भी आप कह सकते हो, जो आपने राइटली कहा है, टिल 5 lakhs इट्स till 5 lakhs, और वो भी till recently sir, it was 3 lakhs only. It was recently the deposit insurance was hiked to 5 lakh rupees. So अगर मेरी 5 करोड़ की भी एफडी है तो it is promised only 5 lakh rupees. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर if your amount is 1 lakh, then can you say in P2P कि आपका वही जो आंसर आपका है वो वही रहेगा? नहीं सर, P2P में तो you are saying it cannot be there is no written. Sir, we can say, but we cannot write it anyway. Sir, again, just to add to what Aditya is saying, sir, track record एक चीज होती है. और दीपक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो कोविड जो था, जो एक वर्स्ट पॉसिबल पीरियड था जो है हम लोग की ह्यूमन हिस्ट्री में, इन द रीसेंट हिस्ट्री, what was your performance? Were you able to give 100% of the principal back, and were you able to fulfill the commitment? If you can answer it, I think so sir का जो question है that will also get answered. तो जवाब मिल जाएगा. You are right. I think COVID is the best example. जी. Deepak? Yes. हाँ, so we were trying to ascertain basically, अगर आपके पास कोई particular slide है और निर्मल sir can throw some light on it, कि during COVID what was the situation, and if there is a particular slide which explains that, मतलब not just 1 or 2 months, but overall during the period of COVID. Yeah. So in our fact sheet, again, we repetitively say that we are transparent. All our fact sheets are available on website. In all our fact sheets, it is written that in last 8 years, no one has lost the principal, and in last 8 years, we have seen the COVID also. Yeah. So this is the NPA chart. I mean, like, this is just after COVID say we started, like उससे पहले का डेटा इसमें आ नहीं रहा था ग्राफ में. So if you'll see वहाँ से the graph is going down. 4.45 was on the like the 2021 वाले Specific query है ना दीपक, specific query is that कि कोविड में किसी ने प्रिंसिपल लूज किया था क्या? हमारे प्लेटफॉर्म पे आज तक किसी ने प्रिंसिपल लूज नहीं किया. Yes, that is the specific query. आपका जो ओपनिंग स्लाइड था ना दीपक, जिसके अंदर आपका जो है 0% प्रिंसिपल, आप वो एक बार दिखा दें. आई थिंक सो दैट विल बी एन रीआइटरेशन. दीपक, आपने स्टार्टिंग में ही काफी अच्छे से बताया था कि किसी भी इन्वेस्टर की कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर हैविंग 2.5% एवरेज एनपीएस. तो आप वही वाला पॉइंट यहाँ पे प्लीज रिपीट कर दीजिए. I will एक second, I'll just put on that 0%. Sure. वो कहते हैं ना कि अगर सर सलामत तो इंटरेस्ट और पगड़ी तो कोई भी पहन लेंगे हम. तो नहीं, ये सही बात है. एक्चुअली ये अपना हार्ड एंड मनी होता है, और इन्वेस्टर दो ही चीज पूछता है कि मेरा जो हार्ड एंड मनी है, मेरा मूलधन है, वो सेफ होना चाहिए पहले तो, और दूसरा ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मेरा मूल नहीं टूटना चाहिए. ये एकदम परफेक्टली सही बोला आपने. ब्याज ऊपर नहीं चलेगा मेरे को, लेकिन मेरा प्रिंसिपल नहीं टूटना चाहिए. दैट इज द रियल कंसर्न इन्वेस्टर आर हैविंग. मेरा मूलधन सेफ है कि नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन. बस ये इम्पोर्टेंट है.
आई एम नॉट एबल टू सी दैट राइट नाउ। एक बार कोई वो बात ना नहीं, फैक्ट ये रहा, यही है। यही वाला ना, हाँ ये इसमें ऊपर लिखा है। यस लॉस ऑफ प्रिंसिपल सिंस लॉन्च। एनी अदर क्वेरी? सो आई होप आपका जो क्वेश्चन था या जो आपका एक वो था, आपको दैट क्वेरी इज सॉर्टेड सर। सर एक क्वेरी है, ग्रीवेंसेस Yes, चैनल इसमें sorted. कैसे वर्कआउट करेगा? सपोज समथिंग प्रॉब्लम विद दैट द कस्टमर, if we want to go through the grievances channel, so ultimately the last grievances will be the RBI, but prior to that the multiple channel they need to follow it before move forward to the RBI. So what will be the channel is and how it will be approached? So in case I know you that are you aware have of not been scientist, experienced it. I know that you have Yeah, not no. been experienced because it's not been defaulted. But take the worst case where it default, then what will be the channel? default means यदि किसी Default ने means somebody as I am an investor, I have faced that scenario where my principal is going into the default, right? I know that it will not default in your cases, right? And never been experienced it. Take a worst scenario where it is defaulted, right? So how the partner or maybe the investor reach out to the RBI? They cannot directly go to the RBI. There the certain grievances channel is defined it. So what are those of the grievances channels? How we approach it? So initially you can write to Lending Club or any P2P lending platform, and then you can anyhow you are always welcome to a regulator. You can no one can stop any investor to approach regulator itself. You can also approach regulator anytime. But legally, if you would ask me what is the channel and all that again will come back to you. कि legally क्या channel रहेगा and all that will share with you. All right, thanks. Tarun ji, question पूछिए please. हेलो। Yes, please. हेलो। दीपक जी, आपने एक बताया कि आपका जो पैसा है 9% स्टार्टिंग 3 मंथ्स वाला जो ब्रैकेट है, वहां पर वो पैसा एस्क्रो अकाउंट के नीचे एक और एस्क्रो अकाउंट हर इन्वेस्टर का रहता है। अब 3 मंथ्स ओवर हुए और आपने बोला वॉलेट में चला गया, वो उसी एस्क्रो अकाउंट में चला गया। लेट्स से आपने तो पर डे पे पैसा आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, अब उसने 2 मंथ्स तक वापस निकाला ही नहीं, देन व्हाट? हाउ मच यू विल गेट? सर एक्चुअली क्या होता है ना, जब व्हेन वी डिजाइन दैट एल्गोरिथम, जो हमारा एआई के थ्रू जब हम डिसबर्समेंट वगैरह करते हैं आपका, कि सपोज आपने मेरे को 1 लाख रुपया दिया, बोला 3 महीने बाद मेरे को दे देना, सो समवेयर अराउंड 2225 रुपीज यू विल गेट फ्रॉम मी 9% एनुअलाइज्ड के हिसाब से 3 महीने में। सो व्हाट आई विल डू इज लाइक, पहली बात तो ये है कि हमारे जो लोन स्टार्ट होते हैं वो 15 दिन से स्टार्ट होते हैं और 15 दिन, 1 महीने, 45 दिन ऐसे जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज लाइक आई विल हैव दैट एल्गोरिथम विद मी, जहां पर वो प्री डिसाइडेड रहेगा कि वो 3 महीने के अंदर वो पैसा डिसबर्सल होके मेरे पास वापस आ जाए। अगर वो 15 दिन का साइकिल पे कहीं पर हो रहा है, तो 15 दिन के साइकिल में वो ऐसे सिस्टमैटिकली एडजस्ट होगा कि बाय द टाइम योर मैच्योरिटी इज देयर, वी हैव दैट मनी विद अस बिफोर हैंड, क्योंकि वी वुड नॉट वांट टू हैव दैट एसेट लायबिलिटी वाला मिसमैच उसके अंदर। तो सर उसमें सर वो केस सिनेरियो आता ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है, वो आपके जब डैशबोर्ड आपका दिखता है, जब मेजॉरिटी वाला वॉलेट जो है, आपको उसमें जो आपका 1 लाख के ऊपर जो मैंने 2225 रुपया दिया है, वो आपको 1,2225 रुपया ही दिखेगा सीधा का सीधा सर वहां पर। नहीं दीपक, उनका क्वेश्चन वो ये तो है कि क्रेडिट हो गया, 3 महीने आफ्टर मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। 2 महीने तक मैंने पैसा 2 महीने तक मैंने पैसे नहीं निकाला। ओके सर, Then पहला how much I अच्छा will ठीक, get? ओके यस। तो सर 2 महीने तक पैसा नहीं निकाला सर, उसमें 2 सिनेरियोज होते हैं। पहली बात तो ये होती कि जो हम आपके जो एडवाइजर हैं, जैसे सेंट्रिसिटी हैं, इनके आरएम्स हैं, इनको डेली बेसिस पे वो इंटीमेशन जाता है कि आपका ये पैसा पड़ा हुआ है वॉलेट पे, प्लीज आइदर यूटिलाइज इट और यू विथड्रॉ इट बोल के, एंड इट्स ऑन अ डेली बेसिस सर। देन वी आर आल्सो देयर टू इंटीमेट पर्सनली टू योर एडवाइजर्स कि देयर इज सम मनी व्हिच इज लाइंग ओवर देयर, प्लीज। और सर आई मीन ये सिस्टम्स तो वैसे बने ही हुए हैं कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका पैसा आइडल रहेगा, तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली सर। फिर तो वो आपकी चॉइस है सर, आई मीन इफ यू वांट टू कीप दैट मनी इनटू वॉलेट, बिकॉज
आपके पास इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी रहेगी और हर तरीके से आपके पास वो इंफॉर्मेशन आएगी कि आपका ये पैसा आइडल पड़ा हुआ है बोल के उसमें। सर छोटे में ये सवाल है कि वॉलेट में ब्याज मिलता है क्या? सर एस्क्रो अकाउंट है सर, वो करंट अकाउंट है, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो सर आपके पास तो पैसा पहुंच गया और यू आर कीपिंग इट विद यू, तो कुछ तो मिलना चाहिए ड्रॉप डाउन होके, चाहे 1 और 2% समथिंग। सर ये पैसा हमारे पास नहीं रहता सर, है, वो risk पैसा management- एस्क्रो अकाउंट में रहता है और उसका हमें कोई फायदा नहीं होता है। But sir, you are also AMC and another AMC. Last week we attended a session. So वहाँ पर ये चीज कही गई कि 9% अगर मिल रहा है तो अगर कुछ दिन पैसा रह गया तो उसका 7.25% ब्याज मिलेगा। सर वो कंपेयरिंग अगेन एप्पल टू एप्पल एंड AMC टू AMC। रेगुलेटरी तो RBI ही है सर, लेकिन वो उनका आई वुड नॉट डिसेल दैट थिंग, बट यस दे हैव अ सर्टेन where liquidity is there provided, so they must have their own internal mechanism where they transfer that money to somewhere else, then they सर वो चीज कर लेते हैं, but we are complying with RBI and not getting into कि आपको हम liquid plans provide करेंगे बोल के, तो हम वो चीज करते नहीं है। सर इनके पास नहीं, कोई भी बात ऐसा तो प्रोडक्ट AMC नहीं है AMC जहाँ कर पे रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पे बात ये है कि सर लेनदेन के पास ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो ओपन एंडेड हो कि आप कभी भी रिडीम कर सके। आपके बगैर नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हुए आपका ये पैसा लॉक इन नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन। ये हाँ ये आई थिंक सर शायद जो फराज सर आप कहना चाह रहे हैं उसके अंदर ये है कि वहां पर लिक्विड वाला फॉर्मेट है और यहाँ पर नहीं है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। जी जी आई जी बिलीव जी सर, जी सर, ऐसे ऐसे ही कुछ समझाना चाह रहे हैं सर। जी जी थैंक यू जी सर, जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सर अनदर क्वेश्चन, आपके प्लेटफॉर्म में रीइन्वेस्ट वाला फीचर है? अगर वॉलेट में पैसा है एंड वी वांट टू रीइन्वेस्ट द मनी, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। यदि वॉलेट में पैसा पड़ा है तो आप उसको रीइन्वेस्ट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, किसी भी टेन्योर में। मैंने So ऑटो do you, रीइन्वेस्ट sorry to interrupt, do you inform the investor probably a couple of days before the maturity time? यस, About this इन्वेस्टर को भेजते हैं, एडवाइजर को भी मैसेज जाता है, दोनों को and जाता है। along with an option that he want either to redeem it or to reinvest it. He Yes, can yes, he can directly do it from that mail itself. From the app or website, yes sir, they can do it. So I might be jumping the gun, but then this option will also be available on our platform on a later date. Understood. Okay. So I would request Centricity team. I would request कि whenever some more queries come after this session, you may direct to us. We will answer those queries and all that. Some thoughts might come later on among investors and advisors, so they are free to ask to Centricity team, and then we will answer those. Okay. Aditya, can if you you share can give the closing remarks, please. Aditya, Anuj, if you can just give the closing remarks, please. Yeah, just a sec. So thank you everyone for joining in today. काफी अच्छा, informative और fruitful session रहा. Thank you everyone for asking a lot of questions. ये बहुत अच्छा मैंने आज notice किया कि सबको जिज्ञासा बहुत ही सारे अच्छे, काफी deep और relevant सवाल सबने पूछे. Thank you very much for that. But the session does not mean that यहीं पे कोई questions पूछे जा सकते हैं और कोई forum नहीं है. Everybody is free to ask as many questions as possible to all the the relationship managers at Centricity or the relationship manager at LaneDen also. One can mail or ask directly over a phone call, and if needed, we can do more such sessions also over the next couple of weeks. But thank you very much for coming in again. Thank you so much for the to team LaneDen also. Thank you so much, निर्मल जी, आपका मैं नोटिस कर रहा था अभी भी आपका वो पूरा ठीक नहीं हुआ है गला, बट थैंक यू सो मच फॉर स्टिल पार्टिसिपेटिंग. But really appreciate you still trying to make that effort. Thank you, Deepak, for joining in, and thank you to all the members at Team Centricity for inviting the partners, and more than everything, thank you to all the investors and clients who have joined in today.
Thank you, Thank you very and much. hope to do more Thank such you to sessions. Lendin Right. Thank you so and much. Thank you so Centricity much. both team. Thank you. Thank you, Vinod Thank sir. you. Thank you so much. Good day. Good night. Thank you, sir.